कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेपरेशन नेक्स्ट आईएएस खुद ही एक स्ट्रेटजी के रूप में दे रहा है। अटेम्प्ट कैसे करना है, ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, अकेले पढ़ना चाहिए, ऑप्शनल और जीएस में बैलेंस कैसे करना है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आप नोट्स बना रहे हो बहुत अच्छा है, बट उसको रिटेन करना इज मच मच मोर इम्पोर्टेंट। बस जो आई कैचिंग चीज़ें हैं, जो बहुत अच्छी चीज़, आप कोशिश करिए न्यूज़पेपर एक दिन में कोई एक चीज़ नोट कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज है लाइक विभास सर हैं, तो उनके क्लास नोट्स में ही एनसीईआरटी का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो कवर्ड होती है। You will be happy to know all of them have been next IAS classroom students and two of them are first attempt you have seen. The others also attempt भले ही ज़्यादा है, लेकिन यहाँ तो लास्ट ईयर मतलब 2022 वाले में ही थे। कोई 21 से भी है? You are from 21-22. Problems which you face here on day-to-day life, how to overcome with the anxiety, what not to do during the preparation, कितना सोशल मीडिया में रहना है या नहीं रहना है या बने रहना है, इनका क्या अपना एक्सपीरियंस है, टेस्ट कैसे लिखना है, नंबर ऑफ कितने टेस्ट देना है, ऐसे कब तैयार करना है, सीसेट को कैसे पढ़ना है, एग्जाम को वो 3 घंटे, दोज 3 hours ऑफ एग्जाम, वो या 2 hours ड्यूरिंग प्रीलिम्स एंड 3 hours ड्यूरिंग द मेंस, वो कैसे बेस्ट एफिशिएंट बनाना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, देन ड्यूरिंग योर रूटीन लाइफ दोस्त कैसे बनाने चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, अकेले पढ़ना चाहिए, एंड इन एडिशन टू दैट ऑप्शनल सिलेक्शन कैसे करना है, ऑप्शनल और जीएस में बैलेंस कैसे करना है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए. We would like to discuss each and everything which will be useful for your preparation. Good evening, everyone. This is Saurabh. I've graduated from IIT Delhi in 2022, and I had joined Next IAS way back in 2019-20. That time I was in college, and I have also out of college I was working in McKinsey & Company as a management consultant. I resigned last year, and this was my first attempt, and fortunately, with God's grace, I have secured All India Rank 23. Good evening everyone. Myself Aryan Sharma. I have graduated from NIT Hamirpur. I have done BTech in Mechanical Engineering. I graduated in 2021. After that I have joined EXL Services for 1 year, and after that I joined Next IAS I'm in B13 batch of 22 sorry, and that batch went for till 23, and this was my first attempt and I got 352 rank. Good evening everyone. My name is Nishan Gupta and I'm from Lucknow. I've done my graduation in mechanical from JSS Noida. I've done my graduation in mechanical engineering from JSS Noida. After that I've pursued my MBA from Wellington Institute in Mumbai. After that I've worked in a private firm for 6 months, and then I decided to pursue civil services and I joined Next IAS in 21-22. I was a student of K batch and this is my second attempt and I'm thankful enough to score 427 rank. Thank you. Good evening, everyone. My name is Sanchit Singh, and I graduated from IIT Delhi in the year 2020. Thereafter, I worked with Tata Projects for a year. I was working at the new Parliament building project, and I joined Next IAS in 2021. I was an online batch student, and this was my third attempt, and I was fortunate enough to have qualified. And talking about where I come from, I'm from Varanasi, Uttar Pradesh. बहुत लोग ऐसा बोलते थे कि शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं होता, and many people they presume that it will take 3 or 4 attempts, but आपके सामने तो 2 परफेक्ट एग्जाम्पल यही हैं. Then Mohit Gupta, Mahi, there are so many other examples also who have done in first attempt. Last year का तो well set example है, 5th ranker Dr. Mayur Hazarika, he also did it in first attempt. तो सिलेक्शन के लिए अटेम्प्ट तो एक ही ज़रूरत पड़ती है. हाँ, रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए एक और अटेम्प्ट लग सकता है, वैसे सिलेक्शन के लिए एक ही अटेम्प्ट चाहिए, एंड दैट कैन बी योर फर्स्ट और कैन बी सेकंड और कैन बी थर्ड. तो पूरे एफर्ट्स आपको पूरे ऑनेस्टली आपको अपने 100% कमिटमेंट के साथ देना है. द आइडिया और द पर्पज ऑफ द टुडेज डिस्कशन इज दैट
कि you should understand कि actually what to be done. What I tell, that maybe my 20 years back observation when I was writing. But these are the people who have done just in this attempt. So they are the best to share their strategy. हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, यहीं से स्टार्ट करते हैं. Got lot many questions I have framed on behalf of you as I told. So Saurabh, I will take the question from you first. कि जो एक होता है ना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, तो ये स्ट्रैटेजी टर्म ऐसा है ना बड़ा डिफिकल्ट है कि कोई रणनीति या स्ट्रैटेजी बनानी है क्या. आप बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में बताइए कि प्रिपरेशन मीन्स व्हाट. इज इट रियली स्ट्रैटेजी और इज इट प्रोसेस? Sir, thank you for raising this question. So, incidentally, from the day of result, every message, every call I get from the aspirant community, or everywhere I go, I have been asked this loaded word strategy. जिसका आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो रणनीति आपने बताया. और सर, रणनीति रण के लिए बनाई जाती है. स्ट्रैटेजी बहुत लोडेड वर्ड है, और स्ट्रैटेजी हर इंसान की, मतलब एक स्ट्रैटेजी 100 वैकेंसीज हैं, 1000 वैकेंसीज है इस एग्ज़ाम में, तो 1000 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होंगी. एंड कोई स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है कि सही है, कोई 100% सही है, कोई ऐसा नहीं है कि 100% गलत है. फॉर एवरी स्ट्रैटेजी विच इज़ वर्किंग फॉर वन पर्सन, there are hundreds of people who are following that same strategy, but it's not working for them. So making a robust strategy is necessary but not sufficient. What is required is execution, robotic execution of the same, and persistent hard work, self-belief in yourself, belief in that strategy also, and a bit of luck, all those things, sir. So apart from strategy, you have to persist, and it's a process, as sir said. प्रोसेस. स्ट्रैटेजी तो अपने आप बनती जाती है. जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता कि आगे हमें करना क्या है, तो रास्ते ऐसे ही बनते रहते हैं. आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने क्या फॉलो किया अपनी प्लानिंग में, मतलब इट वाज ए स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन और इट वाज ए प्रिपरेशन कन्वर्टेड इनटू द सक्सेस? It was a preparation which converted into the success. Like अगर आज मेरा रैंक नहीं आया होता, तो जो मैं आज बोलूँगा वो तुम्हें लगता है कि शायद सक्सेसफुल होने के लिए वो चीज़ नहीं करनी है, और आ गया तो वो शब्द सक्सेस के वर्ड्स बन जाते हैं. इसलिए जो मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि जो कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रेपरेशन नेक्स्ट आईएएस खुद ही एक स्ट्रेटजी के रूप में दे रहा है. तो तुम्हें जो भी करना है उसको ही एग्जीक्यूट करना है बिल्कुल ढंग से. तो यही है मेरा कि जो मैं नेक्स्ट आईएएस बोलता गया मैं वही करता था, ऐसा कुछ एडिशनल अपनी तरफ से नहीं था. माइंड में ये सवाल हमेशा बना रहता है. सो एवरीवन इज एक्सप्लोरिंग दैट आंसर कि हाँ मुझे एक पता लग जाए कि इतना पढ़ने से हो जाएगा, या फिर हमें और पढ़ने की ज़रूरत है. सर जैसे आपने बोला कि ये बन चुका है कि मैं इतना पढ़ूंगा तो क्या इसका रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट के लिए सबसे अच्छे तुम्हारे पास मॉक टेस्ट ही हैं. तुम कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, नेक्स्ट आईएएस का जैसे वीकली टेस्ट होता है, तो तुम्हें उसी में रिफ्लेक्शन मिल जाती है, एक रिफ्लेक्शन उसी में मिल रही है. दूसरी पीवाईक्यूज रिफ्लेक्शन होते हैं तुम्हारी मेहनत का कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं. तो ये दो चीज़ें मैटर करती हैं. बाकी जितना भी कोई एक रिसोर्स है उसी को ट्रस्ट तुम्हें करना पड़ेगा रिसोर्स पर. इन द एंड चाहे तुम कुछ भी फॉलो करो, किसी भी कोचिंग का फॉलो करो, अपने क्लास नोट्स फॉलो करो, एनसीईआरटीज फॉलो करो, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करो, बट ट्रस्ट करना इंपॉर्टेंट है. यही बात अक्षय जैन सर ने बोली थी कि तुम्हें लास्ट में अपने रिसोर्सेज पर ही ट्रस्ट होना पड़ेगा, तभी तुम सक्सेस कर पाओगे. मैं आपसे ये सवाल ले लूँगा निशांत, क्योंकि निशांत बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनसीईआरटी पढ़ के नहीं आए होंगे और वो कॉलेज से ग्रेजुएशन करा सीधे यहाँ आ गए. उनके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है क्या. तो क्या सजेस्ट करते हो कि जैसे अब यहाँ पर हैं इनके पास नोट्स वो सफिशिएंट हैं, या एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, अगर एनसीईआरटी ज़रूरत है तो किन किन सब्जेक्ट्स के लिए ज़रूरी है, तो वो एनसीईआरटी रिलेटेड. What I feel is that NCERT is important for conceptual clarity. There is no fixed formula that questions will come from NCERT. And most of the faculties here, like विभास सर हैं, तो उनके क्लास नोट्स में ही NCERT का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो कवर्ड होती हैं. तो एज सच आपको NCERT इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़नी है कि भाई वो उससे मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे या उससे मेरे को कुछ चीज़ निकालनी है. आपको एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू जानने के लिए एक सब्जेक्ट की जो लैंग्वेज होती है बेसिक, कि जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि नर्मदा कहाँ बह रही है, गोदावरी कहाँ बह रही है, उसके लिए NCERT इंपॉर्टेंट है.
एंड रही बात इसकी कि आपको कौन सी क्लास की पढ़नी चाहिए, तो वो अगेन आपके सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट आपको थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, या जैसे आप क्लास में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है एंड आप उसको थोड़ा कम ग्रास्प कर पा रहे हैं, तो आप उसकी एनसीईआरटीज़ को रेफर कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही 6-7 से। बट अगर आप किसी सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं, आप उसको अच्छे से ग्रास्प कर रहे हैं, आपने उसके सेक्शनल देखे और पीवाईक्यू देखे एंड आप उसको अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, then I think 11-12 की एक cursory reading would suffice. But as far as making notes from NCERT is concerned, I think all the faculties here, they will include those notes in your class notes itself, so you don't have to separately make notes for them. या आई विल टेक द क्वेश्चन फ्रॉम संचित। संचित, हम लोगों ने देखा है कि जैसे प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड हैं, और एनसीईआरटी में कभी कभी पिक्टो इन्फॉर्मेशन रहती है, वहाँ पर कुछ ऐसा हिंट सा मिल जाता है कि ये इसका कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आप डॉल्फिन के बारे में पढ़ रहे हो, बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी होगी एनसीईआरटी में, लेकिन जब प्रीलिम्स में सवाल आता है तो वो डॉल्फिन से ही रिलेटेड है, लेकिन उसका आंसर नहीं है वहाँ पर एनसीईआरटी में। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या क्लास नोट सफिशिएंट है, या बुक पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर गूगल आउट करने की ज़रूरत है? सर इन माय ओपिनियन एनसीईआरटी पढ़ना और उसको समझना दो अलग चीज़ है। बहुत लोग रीड कर लेते हैं, बट रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस भी इम्पॉर्टेंट है। कि जैसे मोस्टली आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारी फिगर्स दी है एनसीईआरटी में, उस पर अजंता एलोरा केव्स में वेरियस पेंटिंग्स दी हैं, लोग देख के छोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपने देखा कुछ यूनिक चीज़ है, आप उसको गूगल कर सकते हैं या क्लास नोट्स पढ़ सकते हैं। तो इन डिटेल रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे अभी इन्होंने बोला कि एनसीईआरटी रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आपको फिर डिटेल में भी चीज़ें समझनी है, सिर्फ उसको पढ़ के रख नहीं देना है कि एक रीडिंग कर ली अब हो गया। इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग वही है। और यूपीएससी डिमांड्स कि आप नॉलेज से ज़्यादा विजडम है आपके पास, कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, सिर्फ आपने फैक्ट्स नहीं रटे हैं वहाँ पे जाके। प्रीलिम्स में बेशक फैक्ट्स आएंगे, वो जानने चाहिए आपको, लेकिन आप जैसे स्टेज में आगे बढ़ेंगे, मेंस में, इंटरव्यू में, तो इट्स योर विजडम विच काउंट्स, कि आपको कितने डिटेल्ड एनालिसिस पता है। तो जैसा सर ने मेंशन किया कि डॉल्फिन है या कोई भी फिगर्स आपको दिखें, तो उस पर एक एनालिसिस आप कर सकते हैं। इतना टाइम रहता है सबके पास, और इतना टाइम आप निकाल सकते हैं कि एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो हर चीज़ के बारे में। और रीसेंट ट्रेंड्स आप देखें, प्रीलिम्स काफ़ी रैंडम होता जा रहा है, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं, तो मे बी आपके स्टैंडर्ड नोट्स नहीं सफाइस करें। उस केस में ये सब चीज़ें भी मैटर करेंगी। आपने कितना डिटेल्ड स्टडी किया है, एनसीईआरटी के फिगर्स पढ़े हैं, टेबल्स पढ़े हैं, रेफरेंसेस होते हैं उसमें बहुत सारे। स्पेशली आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी है जो फाइन आर्ट्स की, उसमें पीछे ग्लॉसरी दी है, उसमें बहुत वर्ड्स हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं एंशिएंट के पेपर में कि इस वर्ड का क्या मतलब है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए आप ग्लॉसरी भी पढ़ सकते हो। तो इन माय ओपिनियन डिटेल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। सौरभ, आपसे भी यही सवाल पूछूंगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत पड़ी थी या नहीं पड़ी थी, किस ईयर में, कितना पढ़ा? सर मैंने बहुत सेलेक्टिव होकर एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी कुछ सब्जेक्ट की, एंड जिस सब्जेक्ट की पढ़ी मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर लार्जली मैंने 6 to 10th क्लास की कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, वो मैंने तभी पढ़ी है जब स्कूल में था, 6 to 8th क्लास में। एंड 11th क्लास की सर पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी लगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन आजकल प्रीलिम्स में थोड़े कॉन्सेप्चुअल भी आने लग गए हैं, तो लक्ष्मीकांत से कई बार बाहर भी आ जाता है। तो आपको पॉलिटी का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी, जो पॉलिटी की एनसीईआरटीज़ हैं क्लास 11th की, क्लास 12th की भी जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, वो काफ़ी अच्छी लिखी गई है, कॉन्टेम्प्रेरी जो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री है बेसिकली इंडिया की। उसके अलावा सर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी क्लास 11th की, वो मैंने पढ़ी तो काफ़ी अच्छी लगी सर। क्लास नोट्स के अप्रोच को ध्यान में रख कर के उनको अगर इनरिच करना हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि 1-2 साल तो लगता है ऐसे समय, Yes, sir. तो वो किस सोर्सेज से इनरिच करना चाहिए? जैसे क्लास नोट्स विल बी एट ए सर्टेन लेवल, Yes, sir. एंड इफ यू वांट टू ऐड ऑन मोर वैल्यूज, तो वो कैसे इनरिच करेंगे? सर सबसे पहले तो जब क्लास नोट्स लिख रहे होते हैं तो जो टॉपिक खत्म होता है उसके बाद 1 या 2 पेज छोड़ देना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी ऐड करना है उसमें तो उसकी जगह रहे और सब नोट्स एक जगह कंपाइल होता रहे।
या फिर अगर आप डिजिटल नोट्स बनाते हैं एवर नोट वगैरह में तो ये काम और आसान हो जाता है। आईपैड से अगर बनाते हैं या डिजिटल नोट्स बनाते हैं तो उसी में आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो पहला तो पॉइंट ये है सर कि एक पॉइंट पे होना चाहिए। अब बात है कि कहाँ से ऐड किया जाए, तो उसका कई सोर्स होगा सर। पहले तो आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो टेस्ट सीरीज में उस टॉपिक के क्वेश्चन जो गलत होंगे उसके मॉडल आंसर से आप पढ़ के उसमें एक्स्ट्रा डाल दीजिए। दूसरा, न्यूज़पेपर में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ करंट इवेंट्स आया तो वहाँ से पढ़ के उस टॉपिक में एक्स्ट्रा डाल दीजिए। उसके अलावा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक का आपने लगाया और गलत हो गया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च करना पड़ा उस टॉपिक में, वो आप डाल दीजिए। कोई आपने उस टॉपिक की रेफरेंस, जैसे पार्लियामेंट क्लास में पढ़ाया गया, पार्लियामेंट आपने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ी, कुछ आपको एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा मिल गई वो भी डाल दीजिए। तो ये सर 3-4 सोर्सेज हैं, वो आप क्लास नोट्स में ही डाल दीजिए और उसके लिए जगह छोड़ दीजिए जब क्लास चल रही हो। आप यहाँ रह रहे हैं तो बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, हजारों किलोमीटर आप घर से दूर हैं। अब एक तो इमोशनली दूर हैं और सोशली दूर हैं, और यहाँ पर खाने से लेकर के रहने तक की हर चीज़ की समस्या है। दैट इज वी नो दैट इट इज अ प्रैक्टिकल। तो आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को आती थी, कैसे उनको सॉल्व करते थे, आप क्या सजेस्ट करोगे इनको कि उनके क्या सॉल्यूशंस हैं? पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पर आके लैंडलॉर्ड की है, जो आप सब फेस कर चुके होंगे अभी तक। वो मतलब काफ़ी मेजर प्रॉब्लम हो जाती है वो इन द एंड। जब तुम देखोगे अगर 2-3 बार रूम चेंज करना पड़े तब तुम्हें आइडिया लगेगा कि हाँ ये बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी होती है कि दोस्तों से टच में रहना है या नहीं रहना है। अब जैसे मेरा एग्जांपल था तो मैं जॉब करके यहाँ आया था, तो मेरे सारे दोस्त नोएडा और गुड़गांव थे। तो मेरे को कट ऑफ करना पड़ा दोस्तों से, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जाती है बाद में कि तुम हर वीकेंड पर मिल रहे हो या नहीं मिल रहे हो। तो उस एंगल में तुम्हें कट ऑफ रहना पड़ता है। लेकिन उसके लिए दूसरा रीज़न होता है, क्योंकि मेरे साथ मेरा एक कॉलेज का रूममेट था, वही यहाँ पे मेरा रूममेट था साथ में, तो मेरे पास एक इंटरेक्शन का सोर्स था। तो ये थोड़ा डाइसी कंसेप्ट है कि या मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ कर दूँ। तो इसका आंसर हाँ इसीलिए है, अगर तुम्हारे साथ कोई इंटरेक्शन करने के लिए है तो तुम कर सकते हो, क्योंकि टाइम तो सोशल मीडिया लेता है और हम सब एडिक्शन में हैं इस टाइम सोशल मीडिया की, तो उससे दूर रहना पड़ेगा। बाकी थर्ड जो मतलब फाइनेंशियल होती है कईयों को प्रॉब्लम, तो मतलब मेरे केस में तो वो नहीं थी अभी तक, मतलब एक अटैम्प्ट के दौरान वो मैंने फेस नहीं करी है। सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है? आप लोग क्या करते थे, कितना रहते थे? और खास करके टेलीग्राम में मैंने देखा है कि हजारों बच्चे एक एक ग्रुप में हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो कितना यूजफुल होता है? सर सोशल मीडिया आई थिंक एक पॉइंट के बाद जाके थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता, बट वो आप 1 महीना 15-20 मिनट आप शुरुआत में मोटिवेटेड रहते हो, सो आप एक दिन में सिर्फ 15 मिनट यूज़ करोगे, बट 2-3 महीने बाद वो 1-2 घंटा हो जाता है। एंड इस एग्ज़ाम में एवरी आवर इज़ वेरी क्रूशियल। तो सोशल मीडिया आप सबको लिमिट करना चाहिए। आपके जो भी यहाँ पे फ्रेंड्स बनेंगे, इंटरेक्शन होगा, आप सबका आपस में इंटरेक्शन होगा। आप कोशिश करिए कि आप जो आपस में बात भी कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के आसपास ही बेस्ड हो। एंड एज फार एज सर टेलीग्राम की बात है, तो टेलीग्राम बिल्कुल हेल्पफुल है। हमारे नेक्स्ट आइज के भी काफ़ी ग्रुप बने हुए हैं, काफ़ी सारे उस पर टॉपर्स हैं जो अपना स्टडी मटेरियल वगैरह डालते हैं, तो आप उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगी, बट उसमें भी आपको अपना टाइम लिमिट रखना है कि अल्टीमेटली व्हाट विल वर्क फॉर यू इज़ आपका हार्ड वर्क। आप टेलीग्राम पे हो, आपने 10 चैनल सब्सक्राइब कर लिए, दैट इज़ नॉट अ शो शॉर्ट गारंटी फॉर योर सक्सेस। अल्टीमेटली आपको वहाँ से भी स्मार्टली चीज़ें निकालनी है एंड आपको मेहनत खुद ही करनी है। एंड आई थिंक हम सब यहाँ पे ग्रेजुएट या ऑलमोस्ट ग्रेजुएट बैठे हैं। कोचिंग के साथ में टाइम मैनेजमेंट एट होम रूम एंड कोचिंग के बाद? मैंने जब कोचिंग की थी या नेक्स्ट आईएएस में, तो आई वाज आल्सो डूइंग अ जॉब। तो मेरा जो शेड्यूल रहता था कि मैं जॉब से आने के बाद आई यूज़ टू सी द क्लासेस, एक क्लास देख ली, और उसमें ज़रूरी ये था कि मैं रिवीजन के लिए टाइम रखता था। रोज़ क्लास करना इज़ गुड, आप नोट्स बना रहे हो बहुत अच्छा है, बट उसको रिटेन करना इज़ मच मच मोर इम्पॉर्टेंट। सो रिवीजन के लिए आपके डेली शेड्यूल में टाइम तो रहना ही चाहिए। आपका डेली टाइम टेबल है, वीकली टारगेट्स है, जैसा भी टाइम टेबल है, बट यू शुड डेफिनेटली हैव सम टाइम कि आप रिवीजन को दे रहे हो। और उसके अलावा मेरा ये भी था कि मैं अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट करूं, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग विच वी ऑल इग्नोर। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स डील करते हैं सिचुएशंस वेयर दे अंडरगो डिप्रेशन, दे डोंट टॉक टू एनीवन, और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बट वी डोंट एड्रेस इट। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है दैट यू इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स। आप बाहर जाओ, वॉक्स पे जाओ, पार्क में जाना है या जो भी आपको अच्छा लगता है। एंड ऑफ कोर्स आपकी हॉबी होनी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लेटर स्टेजेस में यू गो टू द इंटरव्यू, वहाँ पे आपको डैफ में हॉबीज़ भरनी है।
एंड एवरीवन नोज कि बहुत लोग फेक हॉबीज़ भरते हैं, कुछ भी लिख दिया। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से ही कुछ करो, कुछ नया सीखो। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, जो भी इंटरेस्ट है आपका, इफ़ यू डेवलप अ हॉबी नाउ, आपको आगे भी हेल्पफुल रहेगा कि आप इंटरव्यू में उसको जस्टिफाई कर पाओगे। सो मेरा यही है कि आपका जो भी शेड्यूल है आप अपने हिसाब से बनाओ, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, बट उसमें थोड़ा टाइम फॉर रिविजन, थोड़ा टाइम फॉर योर मेंटल हेल्थ। और ज़रूरी नहीं कि स्पोर्ट्स, मैंने बोला स्पोर्ट्स ही करना है, आप म्यूज़िक सुन सकते हो, आप बस घर पे बात कर ली, पापा मम्मी से बात कर ली, बस यू शुड शेयर योर थॉट्स कि हाउ यू फील। वो लोनलीनेस की फीलिंग को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि इट विल, मतलब यू वोंट फील गुड, और फिर पढ़ाई भी वो नहीं हो पाएगी उस लेवल की जो आप केपेबल हो, क्योंकि एट द बैक ऑफ योर माइंड आपके हमेशा ये एक थॉट रहेगा यू आर अलोन इन दिस, नहीं हो रहा है और पढ़ाई नहीं हो पा रही अच्छे से। तो ये ज़रूरी है, आप जो भी शेड्यूल बनाओ, टेक सम टाइम फॉर रिविजन एंड ऑल्सो सम टाइम फॉर योर मेंटल हेल्थ। इसमें तीनों तरह के लोग हैं। ये जॉब के साथ तैयारी कर रहे थे, ये कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे थे, ये कॉलेज के बाद तैयारी कर रहे थे। मेरा सुबह का बैच था, 8:30 से 11:30 का बैच था। तो जैसा इन्होंने भी बोला कि मैं क्या करता था, मैं आई यूज़ टू कम टू क्लास एट 7:30, और जो पूरा पिछले दिन की क्लास होती थी उसमें 7:30 से 8:30 मैं पिछली क्लास को सिर्फ रिवाइज करता था, नथिंग एल्स। एंड उसके बाद मेरा, क्योंकि मेरा ऑप्शनल का भी क्लास चलता था, तो उसके लिए साथ टाइम मैनेज करके मेरा ये रहता था कि एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स बिसाइड्स जो मेरा कोचिंग में टाइम जा रहा है, कम से कम 3 से 4 घंटा मैं प्रोडक्टिव निकाल सकूं अपनी पढ़ाई के लिए। उसमें मैं कोशिश करता था कि जो सब्जेक्ट मेरा कोचिंग में चल रहा है वही सब्जेक्ट मैं कंटिन्यू रखूं, उसी सब्जेक्ट को अपना, और जैसे अगर यहाँ पे क्लास में पॉलिटी चल रही है, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट पढ़ाया जा रहा है, तो मैं घर जाके भी कोशिश करता था कि साथ में लक्ष्मीकांत का भी मैं पार्लियामेंट साथ में चलाऊँ, साथ में वो पढूँ। और उसी के साथ साथ अगर जैसे मैं सेक्शनल लगा लिया या PYQ देख लिए, उसमें कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी मुझे नहीं आ रही, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो देन एंड देयर आई यूज्ड टू कम टू माय फैकल्टी एंड आस्क। बट इसमें भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक तो आपको कोचिंग का जो आपका शेड्यूल चल रहा है उससे आपको पीछे नहीं होना है, आप आगे चलें, दैट इज़ आइडियल। बट वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आप पीछे नहीं चल सकते कि अगर आपकी ज्योग्राफी हुई, उसके बाद पॉलिटी चल रही है और आप अभी भी ज्योग्राफी में, दैट यू शुड अवॉइड। एंड सेकेंड थिंग इज़ रिवीजन, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आप आते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, तो आपको 1-2 दिन तो मेमोरी में रहता है, बट आफ्टर 15 days 20 days इट विल इवेपोरेट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बीच बीच में टाइम निकाल के उसको रिवाइज करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा भी शेड्यूल इनकी तरह था, मेरा भी 8 से 11 का मॉर्निंग बैच था नेक्स्ट IAS में, और 2 से 5 ऑप्शनल की कोचिंग होती थी। तो बीच वाला टाइम तो थोड़ा लंच ब्रेक और थोड़ा सा नैप लेने में हो जाता था, लेकिन 5 बजे के बाद जैसे 6 से 9 एक सेशन, और फिर डिनर करने के बाद 2 घंटे, तो 4-5 घंटे तो सेल्फ स्टडी चाहिए। अगर तुम 2 कोचिंग भी कर रहे हो और एक कोचिंग कर रहे हो तो वही 3 घंटे ऐड कर सकते हो तुम दूसरी कोचिंग के। तो 7-8-9 घंटे की मतलब के टोटल सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी इन द एंड इम्पॉर्टेंट आ जाती है, क्योंकि कोचिंग मैक्सिमम बच्चे सेम कर रहे हैं, लेकिन उसी को जैसे इन्होंने कहा कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें मतलब दिमाग से बहुत जल्दी निकलती हैं, और मोस्ट ऑफ अस की पहली बार पढ़ रहे होते हैं इन्हीं चीज़ों को, तो हमें शुरू में टफ भी लगती हैं। तो वही है, अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को साथ साथ में फॉलो करते रहना, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई या फिर कोई NCERT। जैसे मैंने तो एनशिएंट की पढ़ी थी NCERT, बाकी तो क्लास नोट्स थे, तो क्लास नोट्स भी सफिशिएंट हैं उस केस में। तो यही रूटीन होता था मेरा तो साथ में। सौरभ, आपसे मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर कि डेली रूटीन में इसी प्लानिंग में एक न्यूज़पेपर का एलिमेंट है, और कई स्टूडेंट्स तो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है, और कुछ लोग इतना पढ़ते हैं कि 3-3 घंटे। तो क्या बेस्ट टाइम है न्यूज़पेपर, कितना देना चाहिए न्यूज़पेपर में? सर एक्चुअली ये होता है, जब हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और मतलब बहुत टाइम देके पढ़ते हैं, क्योंकि जनरली ये काफ़ी वो भी बन जाता है, सबको पता रहता है, सब एडवाइस करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। तो हम लोग को लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो न्यूज़पेपर आपको तभी समझ में आएगा जब आपके मेन सब्जेक्ट्स जो हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जो मेन सब्जेक्ट हैं वो सब कवर हो चुके हैं, जिनसे रिलेटेड न्यूज़ आती है एक्चुअली न्यूज़पेपर में। एंड न्यूज़पेपर पढ़ने का ये है कि आप सिलेबस अच्छे से याद कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आप सेग्रीगेट कर पाएंगे कि कौन सा न्यूज़ आर्टिकल सिलेबस के किस पार्ट से रिलेटेड है और ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। सर आइडियल टाइम जो आपका क्वेश्चन था, आई थिंक सर 1 घंटे अगर हम लोग निकाल पा रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो वो अच्छा रहता है। और उसमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि हम पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए, जितना पढ़ पाए ठीक है, एटलीस्ट आपने उतना पढ़ा, क्योंकि मैक्सिमम लोग छोड़ दे रहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि जैसे ही लेटेस्ट स्टेजेस में जाते हैं तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ की, वो हम नहीं पढ़ पा रहे होते हैं। मैं भी नहीं पढ़ पाता था,
मैंने भी लास्ट में ईयरली कंपाइलेशन ही पढ़ी, लेकिन जब मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे न्यूज़पेपर मैंने फिर से स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी थी, और अगर मेरे को फिर से करना रहता तो मैं वही करता, 1 घंटे निकालता। एंड उसके नोट्स भी ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने लग गए, बस जो आई कैचिंग चीज़ें हैं, जो बहुत अच्छी चीज़, आप कोशिश करिए न्यूज़पेपर एक दिन में कोई एक चीज़ नोट कर लीजिए कि ये बहुत अच्छा लगा मुझे। आप वो भी करेंगे डेली तो आपके पास साल के अंत में 365 अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, अच्छे फैक्ट्स, अच्छे कोट्स, अच्छे फ्रेजेस हो जाएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हेडेक मत लीजिए कि नोट्स बनाने हैं या 1 घंटे में करना है, पूरा करना है। ईजी गोइंग होके अच्छे से 1 घंटे आप निकाल के पढ़िए उसको, आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स। जो ये प्रिपरेशन है, कुछ स्टूडेंट्स इसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं अपनी तैयारी को, कि प्रीलिम्स का भी सिलेबस कर लेते हैं, पहले प्रीलिम्स का पार्ट पढ़ लेते हैं, मेंस का बाद में देखेंगे। क्या सजेशन है आपका? सर कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रीलिम्स और मेंस में ओवरलैप हैं, तो सर वो मेरे हिसाब से डिसइंटीग्रेटेड नहीं करना चाहिए। वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं सर? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये प्रीलिम्स में भी है और GS1 में भी है। उसी तरह से पॉलिटी प्रीलिम्स में भी है, GS2 में भी है। इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स में भी है, GS3 में भी है। तो इसको अलग अलग पढ़ने का उतना औचित्य नहीं बनता, क्योंकि आखिर आपको पढ़ना तो 2 बार पढ़ेगा ही, तो एक ही बार जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स के फैक्ट्स आप अच्छे से अलग कलर से अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आप प्रीलिम्स के लिए जब रिवाइज कर रहे हो तो खाली वो उस कलर के हाईलाइट का आप यूज़ करके प्रीलिम स्पेसिफिक वो कर लें, और मेंस का पोर्शन अलग हाईलाइट कर लें दूसरे हाईलाइटर से या अलग तरीके से, कि जब मेंस का पढ़ रहे हो तो खाली वो एनालिसिस वाला पार्ट जो है हिस्ट्री का, जो मेंस में यूज़ होगा, उसको रिवाइज करना पड़े। जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट रीडिंग तो चलिए अंडरस्टैंडिंग में ही चली जाती है, दूसरी रीडिंग में हम लोग चलिए हाईलाइट करते हैं, तो हाईलाइट में आप सेग्रीगेशन कर लीजिए, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ही साथ पढ़िए, बहुत सेपरेशन कर नहीं सकते। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मेन स्पेसिफिक हैं, तो वो आप प्रीलिम्स के बाद कर सकते हैं, लेकिन आइडियली कोशिश ये होना चाहिए कि प्रीलिम्स देने से पहले भी वो सब्जेक्ट एटलीस्ट एक बार आप गो थ्रू किए हुए हों, एथिक्स किए हुए हों, एटलीस्ट एक बार आपने पढ़ा हो, गवर्नेंस पढ़ा हो, सोशल जस्टिस पढ़ा हो, IR पढ़ा हो। ऐसा ना हो कि सब कुछ एक ही बार आपको प्रीलिम्स के बाद करना पड़ रहा है, क्योंकि सब उस टाइम 3 महीने में बहुत हेक्टिक हो जाता है, आंसर राइटिंग करनी रहती है, कई चीज़ें करनी रहती है। राइट। आर्यन, प्रीलिम्स में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आपको स्कोरिंग लगते थे, या जहां आप सोचते हैं कि ये तो होना ही चाहिए टिप्स में, और मेंस में कौन से एरियाज स्कोरिंग होते हैं? प्रीलिम्स में जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक इंजीनियर्स के लिए बेसिकली, या फिर जिनका साइंस बैकग्राउंड है एटलीस्ट +2 तक है, तो ये 3 एरियाज तो होने चाहिए। मतलब पॉलिटी तो ऐसा बन गया है कि अब सब बच्चे ही ठीक कर रहे हैं, अगर जैसे 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7-8 तो ठीक कर रहे हैं एवरेज, जिसने पढ़ा है पूरा साल, तो तुम्हें उन्हीं को 9-10 तक लेके जाना है, अगर कोशिश कर सकते हो अच्छे से। बाकी उस दिन के लक पे डिपेंड होता है। मैं हिस्ट्री में अच्छा नहीं था, लेकिन उस दिन मेरे एंशियंट के ही मतलब परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा ठीक हुए हैं। सारे मॉक में मेरे पॉलिटी में क्वेश्चन ठीक होते थे, लेकिन उस दिन मेरे पॉलिटी में गलत हुए हैं। तो इन द एंड तो उस दिन पर बात आ जाती है, बट एक कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि हाँ मैं पॉलिटी करूँगा तो ठीक करूँगा, इकॉनमी करूँगा तो ठीक करूँगा, साइंस एंड टेक करूँगा ठीक करूँगा। बाकी मेंस की बात ऐसी है कि मेंस का सिलेबस बहुत वाइड है। अब तुम क्वेश्चन का लेवल भी देखोगे तो बिल्कुल चेंज हो गया है, मतलब थोड़ा डेप्थ में बहुत पूछ रहे हैं। तो उसके लिए जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, IR हो गया, गवर्नेंस, तो इनमें ऐसा है कि सिलेबस बहुत कम है, तो तुम न्यूज़पेपर से, मंथली मैगजीन से, कहीं ना कहीं से एडिशन अपने दम पे कर सकते हो। तो वहाँ पे तुम्हें हार्ड वर्क का मतलब वो मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि गेम आधे और 1 नंबर की है, 1 नंबर पर 10 रैंक हैं, मतलब नीचे नीचे। तो अगर अगर तुम्हारे 10 नंबर भी ऐड हुए हैं तो आधे आधे क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन में ऐड हुए होंगे एक पेपर में, अगर तुम्हारा आधा मार्क्स भी ज़्यादा आएगा। हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हमने 1 पॉइंट लिखा था, उसकी वजह से हो सकता है तुम्हें आधा पॉइंट मिला हो, तो वो 10 नंबर बना देते हैं एक पेपर के, और वो 40 नंबर हैं इफेक्टिवली 4 GS के पेपर्स के ही, तो वो बहुत फ़र्क बना देते हैं लास्ट में। कमिंग टू निशांत, जैसे अभी न्यूज़पेपर की बात कर रहे थे कि पढ़ना कैसे है, लेकिन कौन सा पढ़ना है, कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा है आपके अकॉर्डिंग, या न्यूज़पेपर के अलावा मैगजीन भी पढ़नी चाहिए? कितने महीनों के न्यूज़पेपर्स हमें, या कितने महीनों का करंट अफेयर्स देखना चाहिए प्रीलिम्स के पहले? और मैगजीन्स वगैरह या ऑनलाइन पोर्टल्स जहाँ पर करंट न्यूज आती है, तो क्या सजेशन है, आप क्या करते थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। सर जैसे मैंने बताया कि मेरा यहाँ पे 3 घंटे का क्लास होता था, उसके बाद ऑप्शनल का रहता था, तो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज को मैं रेफ़र नहीं कर पाता था। मेरा मेन सोर्स रहता था एक न्यूज़पेपर। तो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में हिंदू पढ़ा था, रिलीजियसली पढ़ा था। मेरा
5 जून को प्री था, तो मैंने 5 मई तक पढ़ा था। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने शुरुआत के टाइम पे कोशिश करी थी कि मैं थोड़ा इंडियन एक्सप्रेस भी लेके चलूँ, मैंने दोनों जगह हाथ पैर मारने की कोशिश करी थी, बट वो मैनेज नहीं हो पाया था, तो फिर एंड में मैं फिर से हिंदू पे आ गया था। बट अब की जब मेरा इंटरव्यू का मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो दोनों पेपर मैंने होलिस्टिकली पढ़े, एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगा कि इंडियन एक्सप्रेस जो यूपीएससी रेलेवेंट न्यूज़ है उसको ज़्यादा कवर करता है। तो जैसे मान लीजिए अगर 10 पन्ने में 10 न्यूज़ हैं हिंदू में और 10 न्यूज़ हैं इंडियन एक्सप्रेस में, तो हमारे जो सिलेबस पैटर्न पे है या हमारे लिए जिसकी रेलेवेंस ज़्यादा है वो इंडियन एक्सप्रेस में आपको ज़्यादा मिलेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करें, एंड आपके करंट अफेयर्स की जो मेन रिसोर्स होनी चाहिए वो मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर ही होनी चाहिए, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली न्यूज़पेपर पे ही बेस्ड होंगे। एंड उसके अलावा आप कोई भी कई सारे पोर्टल्स पे आपको डेली न्यूज़ का वो कंपाइलेशन मिल जाता है, अगर आपके पास टाइम है आप उसको देख सकते हैं। कई सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे आपको न्यूज़ के वीडियोस मिलते हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। दोज थिंग्स आर सप्लीमेंट्री एंड दोज थिंग्स विल ओनली ऐड टू योर प्रिपरेशन, बट जो आपका क्रक्स होना चाहिए करंट अफेयर्स का वो न्यूज़पेपर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। और कितने महीनों का न्यूज़पेपर है प्रीलिम्स के पहले, मतलब एग्जाम की साइकिल में कितना प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, और इसी तरह मेंस में? मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया कि 1 महीने पहले तक मैं फॉलो करता था न्यूज़पेपर को, और कोशिश करता था कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका या तो नोट बना लूँ या उस आर्टिकल का कहीं पे लिंक सेव कर लूँ, कि जैसे मैंने इन्वायरमेंट के जो भी स्पीसीज़ के आर्टिकल आए तो वो मैं एक जगह सॉफ्ट कॉपी में उनको स्टोर कर लेता था, या आर्ट एंड कल्चर बेस्ड कोई भी अगर आर्टिकल आए तो उनको एक जगह स्टोर कर लेता था, फिर एंड में उनको गो थ्रू कर लेता था। और उसके अलावा कितने महीनों का? कि मेरे हिसाब से एटलीस्ट 10 to 11 मंथ्स इज द मिनिमम विच यू शुड स्टडी न्यूज़पेपर्स को। संचित के पास, तो संचित मेरा क्वेश्चन आपसे है पीवाईक्यू से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक तो ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने सालों के करना है, कैसे करना है, क्या पीवाईक्यू को कुछ और एक्सपेंड करना चाहिए, तो इस पर आप अगर डिटेल में बताओ। डेफिनेटली सर, पीवाईक्यू का रोल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस दोनों में ही। और कहाँ से करना है तो 2013 एवरीवन नोज की पैटर्न चेंज हुआ था तब, तो 2013 ऑनवर्ड्स इट्स एडवाइजेबल कि हम एटलीस्ट प्रीलिम्स के सारे पेपर सॉल्व कर लें। और सॉल्व करना ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा उसका आंसर खोज लिया। ऑप्शन एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आया, उसमें 4 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन चलो सही है बट बाकी 3 ऑप्शंस का क्या रेलेवेंस है, वो किस सिलेबस टॉपिक से हैं या उनसे रेलेवेंट क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो एनालिसिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने ये किया था कि हर साल के पेपर में ऑप्शंस पे काफ़ी वर्क किया था कि वो ऑप्शन से क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्यूचर में। और स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है फॉर आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ये जो फैक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस पे हम पीवाईक्यू की बात करें तो फिर से पीवाईक्यूज रिपीट हुए हैं। जिन लोगों ने कंपाइलेशन पढ़ा होगा उनको पता है कि थीम्स रिपीट होती रहती हैं यूपीएससी में। मेंस में बहुत कॉमन थीम्स हैं, इकोनॉमी में सेम क्वेश्चंस कई बार आते हैं, पॉलिटी में सेम क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं, नॉट एग्जैक्टली सेम बट उनका कंसेप्ट सेम रहता है। तो पीवाईक्यूज का डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, तो इट्स वेरी एडवाइजेबल कि आप उसको काफ़ी अच्छे से करें, काफ़ी रिग्रेसली करें। और कई बार ये होता है कि लोग टेस्ट सीरीज़ पे टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं मेंस के लिए और पीवाईक्यू के लिए टाइम ही नहीं बचता है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पीवाईक्यू छोड़ दिया इसलिए कि रेलेवेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में आ जाएंगे, करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, आप टेस्ट सीरीज़ कितना भी लगा लें, पीवाईक्यूज इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको पीवाईक्यूज करना ही करना है। उसके बाद जो टाइम बचे उसको आप लगाइए करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में कुछ भी आ सकता है, बहुत चीज़ें हैं। बट पीवाईक्यूज एक स्टैटिक पोर्शन है और हमेशा अराउंड 60% ऑफ क्वेश्चन स्टैटिक ही रहेंगे मेंस में। 40% करंट अफेयर्स है, ठीक है, बट 60% स्टैटिक क्वेश्चन, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। और उसके लिए पीवाईक्यूज इज़ द बेस्ट सोर्स। एंड इवन फॉर सीसैट पीवाईक्यूज आप पिछले 2 साल के करें तो आपको समझ पाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है, हाउ टू थिंक ऑन दोज लाइन्स। और जिस तरह के क्वेश्चन अब आ रहे हैं यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई दी फॉर्मूला इन सीसैट, तो वो लॉजिक समझना, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का बेस्ट जो तरीका है दैट इज़ पीवाईक्यूज। सो डेफिनेटली आपको पीवाईक्यूज करने ही करने हैं, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन इन माय ओपिनियन। जो मेरा फर्स्ट मेंस था उसमें मेरे ऐसे में 136 मार्क्स थे, विच वाज वन ऑफ द हाईएस्ट इन कंट्री। एंड इस बार दे हैव फ्लक्चुएटेड अ बिट, आई हैव स्कोर्ड अराउंड 116, बट स्टिल दे आर वेरी डिसेंट मार्क्स। तो ऐसे में देखिए, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो है आपके ऐसे की स्ट्रक्चरिंग,
कि आप जो ऐसे लिख रहे हैं वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए। कि देखिए होता क्या है कि हमारे जो ऐसे की कॉपीज़ होती हैं वो प्रॉपर जो डीम्ड फैकल्टीज़ हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की, इंग्लिश ऑनर्स और इंग्लिश लिटरेचर की फैकल्टी वो चेक करती हैं। तो जो मिनिमम एक्सपेक्टेड होता है कि आपके ऐसे की क्वालिटी भले ही थोड़ी 19-20 हो जाए, बट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए। एंड बाय स्ट्रक्चर आई मीन कि इक्वल वेटेज होना चाहिए आपके इंट्रो का, एक दो पन्ने का इंट्रो हो गया, फिर आपने बॉडी लिखी 8-10 पन्ने की, उसमें भी अगर आप 4-5 सब पॉइंट लिख रहे हैं तो सारे सब पॉइंट को इक्वल वेटेज, एक दो पन्ने, एंड देन प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए एक दो पन्ने का। एंड उसके अलावा विच इज़ अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि आपका जो कंटेंट है उसमें आप कोशिश करिए कि थोड़ी यूनिकनेस लाएं, आप थोड़ी नोवेल्टी लाएं। कि अब अगर आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो रहा है तो एग्जामिनर भी ऑल्सो 20 कॉपी पढ़ रहा है, 20 में से 10 कॉपी में अगर उसको वही कंटेंट मिल रहा है तो आपको नंबर मिलेंगे, बट अगर किसी ने कुछ अच्छा लिखा है, कुछ यूनिक लिखा है, उसको आधा नंबर ज़्यादा मिल जाएगा एंड पूरा गेम आधे नंबर का है। सो ये 2-3 चीज़ें अगर आप अपने ऐसे में कर रहे हैं, इट विल हेल्प यू। एंड एज फार एज नोवेल्टी एंड यूनिकनेस इज कंसर्न्ड, आप कोई भी रैंडम चीज़ें पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर 20 पन्ने का अगर मैं किन्हीं भी 2 लोगों को दूं और उनसे बोलूं कि इस न्यूज़पेपर में जो आपको सबसे अच्छा पॉइंट लगा आप निकाल के लाइए, तो दोनों लोग अलग अलग पॉइंट ही लाएंगे, तो आपकी यूनिकनेस कोई बीट नहीं कर पाएगा। तो आप कोई भी रिसोर्स रेफर कर सकते हैं, आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपने न्यूज़ चैनल पे कुछ देख लिया, यूट्यूब पे कुछ अच्छा दिख गया जो आपको लगता है कि इसको मैं आगे जाके ऐसे में कहीं यूज़ कर सकता हूँ, आप उसको इनकलकेट करके एक अपनी अलग कॉपी बना सकते हैं। बुक्स का एक एग्जाम्पल अगर आपने बना लिया, कोई अच्छे ऑथर्स हैं उनका आपने एग्जाम्पल बना लिया, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स आपको अच्छे लगते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो एक अपना आप अभी से एक शॉर्ट नोट मेंटेन कर सकते हैं 10-15 पन्ने का, जो आपको आगे जाके मेंस में काम आएगा। आर्यन, ये इस ऐसे में एक तो ये हो गया कि इन्होंने बताया कि लिखना कैसे है, कंक्लूड कैसे करना है। दूसरा है इसका कंटेंट। कंटेंट में कई बार जैसे अभी बता रहे थे कि नोट्स न्यूज़पेपर से भी कुछ कुछ चीज़ें लिखते जाइए, तो कुछ जैसे कोट्स हैं या फिर कुछ वर्डिंग्स हैं, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स या सेंटेंसेस हम यूज करते हैं जो किसी कविता से उठा लिए रहे होते हैं, या कभी कभी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस कोट कर दी होती है। तो इसको इनरिच करने के लिए अपने नोट्स में कैसे लाते हैं, क्योंकि ऐसे का तो अलग से कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नोट्स होते नहीं हैं। तो ऐसे के रिगार्डिंग ऐसा है कि जैसे मैंने जो करा था, मेरे पास इंट्रोडक्शंस प्रिपेयर्ड थी मेरे पास, लेकिन वो मेरे लिए बैकफायर कर गया था, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट ऐसे था वो चूज़ किया और मैं उसको, मेरे पास उसकी इंट्रोडक्शन थी, तो जो ऐसे का टॉपिक था मेरे को लगा कि इसकी इंट्रोडक्शन मेरे पास है तो मैं अच्छा लिख दूंगा, लेकिन मैंने 15 मिनट के लिए ब्रेनस्टॉर्म किया और मेरे पास ज़रा भी कंटेंट नहीं था, मतलब था बट बहुत ही एवरेज सा कंटेंट था, तो वो चीज़ मेरे लिए बैकफायर कर गई। तो दिमाग में ये रख के मत जाना कि ये 10 इंट्रो हैं, मैं इन्हीं 10 में से कुछ ना कुछ कहीं पे डाल के आऊँगा, क्योंकि मेरे को वो 15 मिनट भारी पड़ गए थे। मैंने 106 स्कोर किया है ऐसे में, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि यार 10 नंबर तो वहाँ पे मतलब लेस रह गए उस वजह से। तो ये बट कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि लिखोगे तुम वही। और दूसरी बात, ऐसे में जैसे इस बार तुमने देखा होगा जो सेकंड वाला ऐसे था, मतलब जो 5 to 8 नंबर क्वेश्चन थे, वो मैक्सिमम वो आए थे जो पहले बोलते थे कि कोर्स बेस्ड क्वेश्चन लग गए हैं ऐसे में आने, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट थीम था, एजुकेशन थीम था बेसिकली। तो वो जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं उनको मैंने उतना रेडी नहीं करा था, क्योंकि हमें लग रहा था कि कोर्स बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे। तो फैक्ट्स फिगर्स रखना, क्योंकि उस ऐसे में सिर्फ फैक्ट फिगर ही बचा सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो क्योंकि वो एक अच्छा सोर्स होंगे। अगर फैक्ट फिगर लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे उन एसेज में जो मतलब के कंसेप्ट बेस्ड ऐसे हैं रेदर देन कोट बेस्ड। सर फर्स्ट मैं मतलब उसको मैं थोड़ा डिटेल्ड में अगर बताऊं कि मुझे क्या लगा कि मेरे लिए सही रहा, पहला तो सर मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो सोसाइटी के वाले ऐसे मैंने चूज़ कर लिए थे, तो उससे बेनिफिट हुआ। दूसरा सर फर्स्ट थिंग है चॉइस ऑफ एस्से, तो चार टॉपिक है, तो कई बार ऐसा होता था, आप लोग के साथ भी होता होगा कि चार आप टॉपिक देखेंगे तो एक टॉपिक की तरफ आप आकर्षित हो जाएंगे सर, जो आप आकर्षण और उसकी बात कर रहे थे सर, वन टॉपिक यू विल गेट अट्रैक्टेड टू, और जनरली वही वो टॉपिक होता है जो आपको सबसे अच्छे से आता है, मतलब एक दो तो आपको देख के लग जाएगा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, एक दो होगा जिसमें आपको लगेगा कि ये शायद लिख सकता हूँ, उसी में से चूज करना चाहिए। दूसरा सर उसका मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, यू शुड बी वेरी वेरी थॉरो विद एंड कॉन्फिडेंट अबाउट इट्स इंटरप्रिटेशन,
कि वो जो मैं मीनिंग समझ रहा हूँ वही सही मीनिंग है, और उसमें सर दिमाग में संशय नहीं होना चाहिए कि ये है या सही ये। मैं देखता हूँ सर कई लोग टॉपिक एक चूज़ कर लिया, एक पैराग्राफ लिखा, काट के फिर दूसरा टॉपिक चेंज करते हैं। तो वो सब मत करिए, चॉइस ऑफ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप 5 मिनट दे दीजिए और सही टॉपिक चूज़ कर लीजिए। सर सेकंड होता है उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो सर मैं ऐसे करता था कि जो टॉपिक का मीनिंग मैं समझ लिया कि ये मीनिंग है इसका, तो सर मैं सारा जीएस का सिलेबस स्कैन करता था कि इस मीनिंग से रिलेटेड हिस्ट्री में कोई एग्जांपल है क्या, इस मीनिंग से रिलेटेड पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एग्जांपल है क्या, सारा एक एक करके स्कैन करता था। और इससे सर लगभग मेरे पास 10-15 एग्जाम्पल हो जाते थे। और ऐसे में अमूमन 10 पेज लिखने होते हैं सर, तो मतलब एक पेज पे 2 पैराग्राफ है, तो 20 आइडियाज़ आपको लिखने हैं। एक आइडिया है तो उसके अराउंड आप एक पैराग्राफ बना लेंगे। तो सर ये प्रोसेस मैंने फॉलो किया एस्से के लिए। और सर ये था कि नॉवेल्टी की जो बात हो रही थी, ये देखना चाहिए कि दोनों सेक्शन में सिमिलर टाइप के टॉपिक कैसे आप ना चूज कर लें, क्योंकि फिर एक उसने पढ़ा फिर दूसरे पे गया तो उसको सिमिलर सा लग रहा होगा। तो दोनों में थोड़ा अलग अलग टॉपिक हो तो अलग दिखता है। ये नहीं कि सिमिलर आइडियाज दिखने लगे या सिमिलर स्ट्रक्चर पे लिख दिया। मैंने सर दोनों का स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग कर दिया था। पहले वाला ऐसे मैंने क्वेश्चंस के फॉर्मेट में लिखा था, प्रोबिंग क्वेश्चन आस्क करके कि व्हाट इफ दिस हैपेंस, व्हाट इफ दैट हैपेंस, ऐसे करके मैंने पैराग्राफ्स बनाए थे। दूसरा वाला ऐसे सर मैंने जैसे से पूरा टॉपिक जो था उसको ब्रेक कर दिया था, जस्टिस को ब्रेक कर दिया था, चैरिटी को ब्रेक कर दिया था, और अलग अलग हर एक टॉपिक के अंदर 2-2 पेज लिख दिए थे। तो स्ट्रक्चर भी दोनों का अलग था, तो दोनों उसको मतलब एग्जामिनर को लगेगा कि इसको थोड़ा डाइवर्स राइटिंग भी आता है, वो बोर नहीं होगा। तो सर मुझे लगता है शायद ये अच्छा लगा, हो सकता है उनको कोई और चीज़ अच्छी लगी हो। तो ऐसे को प्रैक्टिस करने का राइट टाइम क्या होता है? अभी ये लोग प्रैक्टिस करें या प्रीलिम्स के बाद प्रैक्टिस करें? सर आई थिंक जीएस का अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर ले रहे हैं या फिर 6-7 महीने में आप पढ़ चुके हैं, 6-7 महीने की तैयारी में है, तो सर 2 वीक में एक ऐसे लिखने में किसी का कोई वो नहीं होगा, हानि नहीं होगी, क्योंकि 90 मिनट है सर, उतना आप कभी भी टाइम निकाल के लिख सकते हैं। और उसको बोझ की तरह नहीं लिखना है, लेना है कि आज ऐसे लिखना है। ऐसे को एक हैप्पीनेस एक्सरसाइज की तरह लिखिए कि चलिए आज मैं अपना नॉलेज एक्सप्रेस करता हूँ पेपर पे। तो सर इसको थोड़ा एंजॉयमेंट के साथ करना चाहिए। मतलब यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं एथिक्स पर, क्योंकि ये देखो ऐसे और एथिक्स पेपर ऐसे हैं जैसे जीएस 1, 2, 3 में उतना स्कोर नहीं आ रहा जितना ऐसे में 136 की बात कर रहे थे अभी, वो भी उनको भी पहले 136 आए, और एथिक्स में भी 100 प्लस आराम से आ रहे हैं, बाकी पेपर्स में उतने नहीं आ रहे। जबकि मुझे लगता है कि साल भर तो जीएस 1, 2, 3 ही पढ़ते हैं। जी सर, जी सर। तो अब एथिक्स पर बात कर लेते हैं, सोर्स ऑफ स्टडी और कैसे पढ़ा आपने, क्या इनको क्या पढ़ना चाहिए? सर आई थिंक केएम पाठी सर के नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, स्पेशली जो जितने टॉपिक्स वो पढ़ाते हैं, मैंने उन टॉपिक्स के लिए तो और कुछ भी नहीं पढ़ा सर। एंड सर उन्होंने टेस्ट सीरीज भी मतलब प्रीलिम्स के बाद, तो लेते सर हैं वो। उनका सर एक वो चैनल भी एथिक्स 101, तो वो भी काफ़ी अच्छा है सर, तो वो भी फॉलो करता हूँ। और सर के कांस्टेंट टच में भी था, तो सर कुछ पोर्शंस जो थे वो उन्होंने कवर नहीं किए थे, तो सर उसके लिए मार्केट में जो अवेलेबल कंटेंट था वो मैंने किया था सर। या आर्यन, आपका एथिक्स को लेकर के? एथिक्स को लेकर के एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है फर्स्ट अटैम्प्ट में कम टाइम होता है तो मैं एथिक्स को प्रिपेयर करने के लिए, बट जैसे इन्होंने बोला कि मैंने भी केएम पाठी सर के नोट्स फॉलो किए थे, और सर के नोट्स में एक खास बात है कि एथिक्स हमें लगता है कि समझने का क्या ही है उसमें, जैसे कुछ भी क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंटेग्रिटी भी आ रहा है सिंपल, तो हमें लगता है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे पाठी सर एक एग्जाम्पल लेके पूरा क्वेश्चन समझा देते हैं, तो वहाँ पे वो आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छी करवाते हैं उसी से, तो मेरे को लग रहा है कि सर अच्छा करवाते हैं। बाकी जो सेकंड वाला पोर्शन आता है उसमें भी मैंने राज राय सर के ही कंटेंट को फॉलो करा था, तो एथिक्स के लिए सच ज़्यादा वैल्यू एडिशन मैं कर नहीं पाया था अपनी साइड से, बट यही नेक्स्ट IAS के सोर्सेज को फॉलो किया था। राइट, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन एथिक्स? सर जैसा इन लोगों ने बताया सर, मैंने भी मेन सोर्स मेरी क्लास नोट्स ही थी। मैंने पति सर को फॉलो किया था, टेस्ट सीरीज लगाई थी। उसके अलावा मैंने एथिक्स में क्या किया था कि क्योंकि जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तब श्रुति शर्मा मैम ने टॉप मारा था, तो उन्होंने अपने नोट्स डाले थे टेलीग्राम पे, तो उनका मतलब सब लोग बोलते थे कि उनके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं, जो कि वाकई हैं। तो मैंने उनके एथिक्स के नोट्स में से एग्जाम्पल का एक अपना 1-2 पन्ने के नोट्स बना लिए थे और उनको अपने क्लास नोट्स में ऐड कर लिया था और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी। क्योंकि एथिक्स में क्या होता है कि एथिक्स में पेपर कंप्लीशन इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज, कि एथिक्स में टाइम बहुत लगता है पेपर कंप्लीट करने में। और कई बार हम लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हमको लगता है कि जैसे एथिक्स में आप सबको पता होगा 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन बी पूरा केस स्टडीज़ होता है, तो मतलब परसेप्शन ये है कि सेक्शन बी में मार्क्स ज़्यादा आते हैं, बट अगर आप आंसर्स अपने अच्छे से लिख रहे हैं, आप पॉइंट्स अच्छे डाल रहे हैं, थोड़ा आपने डायग्राम डाल दिया, थोड़े आपने अलग अलग वेराइटी के एग्जाम्पल डाले, कुछ फिलोसफिकल, कुछ हिस्टोरिकल, कुछ कंटेम्प्रेरी, तो आपको सेक्शन ए में मार्क्स अच्छे आते हैं। एंड सेक्शन ए इज़ कंपैरेटिवली ईजियर टू कंप्लीट दैन केस स्टडी, तो आप उसमें भी थोड़ा माइक्रो मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप जब एथिक्स एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप टेस्ट लिखेंगे
तो आपको खुद ही से अपनी स्ट्रेंथ जाननी पड़ेगी कि दैट विच इज़ योर कंफर्ट जोन, आप सेक्शन ए में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या सेक्शन बी में। एंड जिस सेक्शन में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उसमें आप कोशिश करिए कि 10-15 नंबर का एज लें, एंड जिस सेक्शन में आपको लग रहा है कि आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है या आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, उस सेक्शन को आप थोड़ा सेफ खेलें कि उसमें कोशिश करें कि बेयर मिनिमम नंबर आ जाए बस। Sanchit, I'll just move away from the ethics. Now I'll come to CSET, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा है आज के टाइम पे CSET लोगों को, और स्पेशली दोज हु आर फ्रॉम नॉन साइंस नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। आप लोग तो ज़्यादातर इंजीनियर हैं। क्या अप्रोच होनी चाहिए CSET को लेकर के, और कितना लाइटली लेना चाहिए या फिर लग जाना चाहिए, या कब से उसको पढ़ना चाहिए CSET? लास्ट 2 ईयर के पेपर देखने के बाद मैं तो नहीं बोलूँगा लाइटली लेना चाहिए सी सैट को, क्योंकि वी हैव सीन केसेस लोगों के 120 आए जीएस में बट दे कुडंट क्लियर सी सैट। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, सी सैट में यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, सॉल्व कैसे करना है, रादर देन कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं हम। और आप फॉर्मूला रट के जाएंगे कि ये फॉर्मूला लगेगा ऐसे क्वेश्चन में, वैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं एग्जाम में। एग्जाम इज़ मोर रीज़न बेस्ड, लॉजिक बेस्ड, कि आप कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़ कितनी है और कैसी हैं। और सेकेंडली इम्पॉर्टेंट है कि पेपर कैसे अटैम्प्ट कर रहे हैं। फर्स्टली यू शुड सी कि जैसे इस बार का पेपर देखे कॉम्प्रिहेंशंस बहुत ईजी थे इंग्लिश में, बट बहुत लोग ने मैथ्स में इतना टाइम दिया कि दे डिडंट हैव एनी टाइम फॉर कॉम्प्रिहेंशन। तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पार्ट ऑफ पेपर आप अटैम्प्ट करेंगे पहले। कॉम्प्रिहेंशन जनरली ईजी होते हैं इंग्लिश में, यू कैन ईजिली डू इट। मैथ्स कभी टफ हो जाती है, स्पेशली फॉर ह्यूमैनिटीज से जो हैं, जो टच में नहीं है मैथ्स के बहुत टाइम से। दे शुड अवॉइड कि मैथ्स में इजी क्वेश्चन भी होते हैं, यू कैन ईजिली डू इट, बट दे शुड फोकस मोर ऑन कॉम्प्रिहेंशन। तो वो स्ट्रैटेजी कि कौन सा पार्ट ऑफ पेपर सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से सॉल्व करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यू जस्ट हैव टू क्लियर दी स्टैंडर्ड 66 मार्क्स। ऐसा नहीं है कि आपको टॉप करना है उस पर या कुछ, बस कट ऑफ क्लियर करना है। तो बेयर मिनिमम आपको करना है कि बस कट ऑफ निकल जाए। उसके लिए आप जैसे भी करो, कॉम्प्रिहेंशन कितने करने हैं या कैसे करना, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी है। बट डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि डोंट रन आफ्टर रैंडम फॉर्मूलाज कि रट लिया फॉर्मूला, सी सैट शायद ना निकले उससे। इट्स बेटर कि आप डेवलप करें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। और एथिक्स पे ऑल्सो आई वॉन्ट टू से समथिंग, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 85 इन एथिक्स एंड दिस टाइम आई स्कोर्ड 117। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो मेरा इम्प्रूवमेंट था वो इसलिए था बिकॉज आई फोकस मोर ऑन प्रेजेंटेशन, कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आंसर्स को। मैंने बहुत फ्लो चार्ट्स, फिगर्स और वेरियस वेन डायग्राम्स बनाए थे अपने आंसर्स में, और एग्जांपल्स भी, कि जैसे आप देखें बहुत लोग, सब लोग आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, अशोक खेमका के एग्जांपल देते हैं। सो इट बिकम्स मोनोटोनस फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो कि वही एग्जांपल्स बार बार आ रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पर्सनल लेवल पे भी देखें, आपके आसपास या न्यूज़पेपर में कई बार बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं ऐसे जो आप मेंशन कर सकते हो। इट विल गिव अ यूनिकनेस टू योर आंसर्स, और वो मैटर करता है कि एग्जामिनर को कुछ यूनिक चीज़ें दिख रही हैं, कुछ नए आंसर्स हैं, तो इट्स डेफिनेटली शायद आपको एक आधा नंबर ज़्यादा मिले। और कंसिडरिंग 10 क्वेश्चन है, आपको एक एक नंबर ज़्यादा मिला, यू विल गेट अ बेनिफिट ऑफ अराउंड 10 मार्क्स। एंड 10 मार्क्स की कीमत तो सबको ही पता है क्या है मेंस में। सो डेफिनेटली आप पर्सनल लेवल पे वर्क करें, रादर देन किसी टॉपर के एग्जांपल्स उठा लिए और सेम एग्जांपल्स बहुत लोग देंगे। तो यही सजेशन है कि न्यूज़पेपर इज़ अ गुड सोर्स, आपको बहुत एथिक्स के एग्जांपल मिलेंगे, वेरियस केस स्टडीज़ एंड एवरीथिंग यू कैन डू फ्रॉम देयर। वेरी गुड। अभी जैसे एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसका सिलेक्शन, और दूसरा ऑप्शनल और जीएस को बैलेंस करना, क्योंकि कई बार हम या तो ऑप्शनल पढ़ने बैठते हैं तो जीएस छूटने लगता है, और जीएस पढ़ते हैं क्लास करना है तो फिर ऑप्शनल इग्नोर हो रहा है। तो ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए? हालांकि अधिकतर लोगों ने ऑप्शनल डिसाइड कर लिया होगा, बट स्टिल क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना चाहिए ऑप्शनल सिलेक्शन में? और जब पढ़ाई करते हैं तो ऑप्शनल और जीएस को पैरेलल कितना या सेपरेट कितना, किस मंथ तक ऑप्शनल पढ़ के फिर ड्रॉप कर दो, प्रीलिम्स के कितने महीने छोड़ दो, पहले कितने पहले ड्रॉप कर दो? मेरे हिसाब से ऑप्शनल का जो आपका सिलेक्शन है, दैट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन दैट यू विल टेक इन दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ऑप्शनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक क्योंकि ऑप्शनल आपको इतना सस्टेन करना है, आपको हो सकता है 1-2 साल से ज़्यादा भी पढ़ना पड़े, तो ऑप्शनल का जो क्रक्स होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए कि आपको उस ऑप्शन में इंटरेस्ट है कि नहीं। आप वो सब्जेक्ट, आपका जो वर्स्ट डे है कि उस दिन आपका 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा,
बट उस दिन भी अगर आपको 2 घंटा अपना ऑप्शनल की किताब लेके बैठना पड़े, नोट्स रिवाइज करने को बैठना पड़े, तो यू शुड नॉट फील हैवी. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरेस्ट. सेकेंड चीज़ आपको देखना चाहिए कि उस ऑप्शनल की अच्छे से रिसोर्सेज एंड अच्छे से गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं. कि आपने कोई ऑप्शन ऐसा उठा लिया, उसका मार्केट में बुक्स नहीं है या अच्छी गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, तो भी आप स्ट्रगल करेंगे. सो ये 2 पैरामाउंट आपको चीज़ें देखनी चाहिए. उसके बाद कहीं आके थर्ड क्राइटेरिया इज देयर, देन इट इज़ कि उसका पिछले 2-3 साल में, 4 साल में मार्किंग में क्या ट्रेंड चल रहा है. एंड मैंने इसको सबसे नीचे इसलिए रखा है क्योंकि ऑप्शनल के मार्किंग का जो ट्रेंड है वो फ्लक्चुएट करता है. हर 2-3 साल में, 4 साल में इट चेंजेस. सो दैट कैन नॉट बी योर मेन रीज़न. योर मेन रीज़न हैज़ टू बी उसकी गाइडेंस आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, एंड सेकेंड आपको सब्जेक्ट में इनहेरेंट इंटरेस्ट है कि नहीं. एंड कमिंग टू कितना टाइम देना चाहिए, तो आप लोग जैसे 25 में लिखेंगे अपना, तो अभी यू हैव सफिशिएंट टाइम. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि बाय मैक्सिमम बाय दिसंबर आपका ऑप्शनल के दोनों पेपर के नोट्स अच्छे से रेडी होने चाहिए. एक बार आप उसको पढ़ चुके हों, एक बार अगर आपको जैसे बोलते हैं हम लोग कि कंठस्थ याद ना भी हो, बट एक बार अच्छे से आपको उसका क्लैरिटी होना चाहिए, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए. एंड अगर आपने उसकी थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग भी कर ली हो तब तक तो आइडियल है. बट इफ़ यू आर राइटिंग योर फर्स्ट प्री इन 25 एंड जिस तरह का प्री आ रहा है, आई थिंक बाय दिसंबर यू शुड complete it, and from January धीरे धीरे you should shift to your prelims paper. That would be my suggestion. That's great. Aryan, you would like to add anything? लास्ट मेरा ये था कि ऑप्शनल की लेंथ भी मतलब कि इम्पॉर्टेंट है कि कितना बड़ा ऑप्शनल है, क्योंकि 2 कोचिंग के साथ बहुत हैवी हो जाता है. तो अगर ऑप्शनल की लेंथ भी इम्पॉर्टेंट है, बट जैसे इन्होंने मेंशन किया पहले 2 फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में तुम्हारा कुछ हो जा रहा है तो तुम्हें लग रहा है कि हाँ कुछ हुआ, लेकिन अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक पढ़ना पड़ रहा है तो इंटरेस्ट पैरामाउंट बात आ जाती है. क्योंकि लेंथ तो तुम कवर कर लोगे इन द एंड, बट एक फैक्टर है, बट बहुत ही छोटी परसेंटेज है उसकी. अब सौरभ, ये आंसर राइटिंग को लेकर के शुरू से एंजाइटी रहती है कि कैसे लिखेंगे, क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए, कैसे डेवलप करें. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या आपने प्रैक्टिस फॉलो की, और आप क्या सजेशन दोगे कि ये लोग कैसे अभी से अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकें? सर फर्स्ट तो इसमें ये रहता है कि आंसर राइटिंग के लिए आपको अपना इनर्शिया जो है वो ब्रेक करना है. हमें हमेशा लगता है कि हम और पढ़ लें थोड़ा या बाद में लिख लेंगे, वो बात करते करते बहुत बात हो जाता है. एंड सर ये है कि उसको इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका है कि जो आज पढ़ा आपने क्लास में तो वो एकदम दिमाग में है आपके, तो उससे उस टॉपिक से रिलेटेड आंसर आप उस दिन लिख सकते हैं, भले ही आपको आंसर राइटिंग स्किल अच्छी नहीं आती है. तो आंसर राइटिंग आपको डे 1 मतलब अगर फर्स्ट मतलब पहला दिन आप अगर आंसर लिखने का है तो सबसे इजी क्वेश्चन उठाइए जो उस दिन आपने पढ़ा है या एक दिन पहले पढ़ा है, जो आपके दिमाग में जो सारा कंटेंट है. नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, एक बार आप कॉपी फिर से देख लीजिए, लेकिन पहले आप लिखने का प्रैक्टिस करिए. पहले ये मत देखिए कि मैं 7 मिनट में लिख रहा हूँ या 11 मिनट में लिख रहा हूँ. टाइम लेके लिखिए, फिर टाइम धीरे धीरे मतलब कुछ महीनों में फर्स्ट और एक आंसर डेली लिखिए. एक आंसर डेली लिखेंगे तो ट्रिमेंडस प्रोग्रेस आ जाएगा. 30 दिन में आप देखेंगे ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट, 6 महीने में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट, 1 साल में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट. फिर धीरे धीरे टाइम का कंस्ट्रेंट लगाइए कि नहीं अब मुझे 7 मिनट में ही लिखना है, अब मुझे 11 मिनट में ही लिखना है. फिर धीरे धीरे उसमें स्ट्रक्चर का कंस्ट्रेंट लगाइए कि नहीं अब मेरे को इंट्रो इतना ही लिखना है, कंक्लूजन इतना ही लिखना है, बॉडी में ये वे फॉरवर्ड, सजेशन, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, आर्ग्यूमेंट फॉरवर्ड, ये सब स्ट्रक्चर बाद में लगाइए. लेकिन पहले लिखना स्टार्ट करिए, फिर टाइम कंस्ट्रेंट लगाइए, फिर स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट लगाइए, और धीरे धीरे सर इम्प्रूव होता है ये. देखिए ये जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, एक सौरभ मेरा सवाल आपसे है कि जब मेंस का आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट सीरीज में तो स्पेस गिवन होता है, यू डोंट हैव एनी स्कोप टू मेक एनी रॉन्ग आंसर. अगर आप गलती कर दी कट करके दोबारा लिखने के लिए स्पेस ही नहीं है, तो वो गलतियां ना हो या आंसर हमारा बेस्ट हो, तो माइंड मैप पहले से कैसे बनाना चाहिए या फिर उसको प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर्स? सर इसका 3 ही चीज़ है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है सर. जैसे मैंने प्रीलिम से मेंस के बीच में वो 3 महीने में लगभग 45 टेस्ट दिए थे, और मुझे लगता था कि मैंने बहुत ज़्यादा दिए हैं, बट अब मैं सुनता हूँ कि लोग 60 भी देते हैं, 80 भी देते हैं. तो सर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे सर अगर इसको क्वांटिफाई किया जाए तो अगर मैं कहूँ कि आपने 1000 आंसर्स लिखे हैं मेंस के, तो आप इस स्टेज पे पहुँच जाते हैं. 1000 आंसर्स इज अप्रॉक्सीमेटली 50 टेस्ट. अगर आपने 1000 आंसर लिखे हैं एक साल में, तो आप इस स्टेज पे पहुँच जाते हैं कि आप किसी भी
रैंडम क्वेश्चन का आंसर आप सोच के बना के लिख सकते हैं। एंड सर इसमें इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप मेंस में अगर आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है तो सर पेन आप ज़्यादा उठा नहीं सकते कि पेन उठा के आप सोच रहे हैं, पेन वो लगातार चलता तभी कंप्लीट हो पाएगा, वरना क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो सर ये सब फर्स्ट दिन नहीं हो पाएगा, फर्स्ट दिन वो देख के भयभीत नहीं हो जाना चाहिए कि ये मेरे से कैसा होगा, ये धीरे धीरे हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है लेकिन हो जाता है। और सर जो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स की बात कर रहे हैं, ये कोई उस टाइम पे एग्ज़ाम परीक्षा के समय कोई दैवी शक्ति नहीं आ जाती है कि वो डायग्राम बना देती है, उसका बहुत होमवर्क करना पड़ता है। आप डायरी उसका बनाइए या एक सेपरेट जगह पे उसका डायग्राम का आप पूरा कंपाइलेशन करिए, उसको रोज़ देखिए, तब जाके वो डायग्राम रिप्रोड्यूस हो पाएगा या वो फ्लो चार्ट रिप्रोड्यूस हो पाएगा वहाँ पे एग्ज़ाम में। अब आ जाते हैं वो मैजिकल 2 घंटे जब एग्जाम में अपीयर होना होता है। वो जो 2 घंटे का जो फ़ियर और परफॉर्मेंस को बैलेंस करना है। पता चला हमने सवाल अटेम्प्ट करना शुरू किया और लाइन से सवाल नहीं बन रहे हैं। तो एक जो स्ट्रेस डेवलप होता है बैक एंड पे, ऐसा कई बार ना ख़ास करके 2 साल में सीसेट में तो देखा ही है। तो वो जो अटेम्प्ट ऑफ पेपर है 2 घंटे में, वो अटेम्प्ट ऑफ पेपर कैसा होना चाहिए? वहाँ पर कैसे अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं? सर उसके लिए तो पहले ये सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि अगर मैंने मेहनत की है तो अपने आप पे मुझे बिलीफ है। उस टाइम पे आप घबरा जाएंगे तो पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी। तो पहले तो उस टाइम पे पेशेंस रखना चाहिए कि ठीक है कठिन है पेपर, तो 75 कट ऑफ गई है सर इस साल, मतलब आपको कितने क्वेश्चन सही करने थे, लगभग 40, हाँ 38 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सही करने थे। और लेकिन उस टाइम पे हमें लगता है कि पूरा पेपर हमारा खराब, लेकिन उस टाइम पे हम रुक रुक के 20-25 क्वेश्चन तो हमको आते ही रहते हैं स्टैंडर्ड बुक से, 10-15 क्वेश्चन आपको गेसिंग या एलिमिनेशन से सही करने थे। लेकिन ये सब हम लोग हाइंड साइड में सोचते हैं कि काश उस वक्त सोच लिया होता। उस वक्त जब सोचने का टाइम होता है तब घबरा जाते हैं या पैनिक हो जाते हैं, और सर बहुत ज़्यादा होता है ये। तो सर उस समय ये सोचना चाहिए कि कंपटीशन जो है वो रिलेटिव है, ऐसा एब्सोल्यूट कंपटीशन नहीं है कि एक पर्टिकुलर नंबर तक आपको पहुंचना है, अनलेस सीसैट है वो। तो उसमें सर उस टाइम पे पेशेंस रखना चाहिए, काम मन कंपोज रखना चाहिए, सोचना चाहिए कि एग्जाम का रिजल्ट जो भी होगा या एग्जाम कैसा है, डिफिकल्ट है, ईजी है, ये मैं 2 घंटे बाद सोचूंगा। अभी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, जितना बेस्ट नॉलेज आता है, जितना मेरा स्किल्स है, उससे मैं बेस्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर देता हूँ। मेंस का एक्चुअली ऐसा है कि सर ने 45 पेपर लगाए थे, ऑन द कॉन्ट्रेरी मैंने 4 पेपर लगाए थे। तो ये नहीं सर, मतलब मार्क्स में डिफरेंस तो होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बात कि सर के मार्क्स बहुत होंगे इसीलिए रैंक इतना ऊपर है, बट एक्चुअली टाइम का कंस्ट्रेन है और तुम्हें अपनी मतलब तुम किस चीज़ पर स्ट्रांग हो वो देखना पड़ेगा। मैं माइंड में स्ट्रक्चर कर लेता था आंसर को, जैसे कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको माइंड में स्ट्रक्चर कर लेता था कि मैं ये 4 पॉइंट लिखूंगा, इसलिए मैं आंसर कम लिखता था। तो उस बात पर ध्यान रखना कि कोई एक स्ट्रेटजी नहीं है जैसे सब बोलते हैं, तो अपने हिसाब से टेम्पलेट बनाना। जैसे सौरभ ने मेंशन किया कि डेली आंसर राइटिंग करना इज़ बेनिफिशियल, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इफ़ यू पिक अप PYQs फॉर डेली आंसर राइटिंग इट्स मच बेटर। क्योंकि मैं जो डेली आंसर राइटिंग करता था तो मैं PYQs पे ही करता था। यू गेट आइडिया कि UPSC किस डायरेक्शन में क्वेश्चंस पूछ रही है, और PYQs के मॉडल आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। तो आप कंपेयर भी कर सकते हो कि आपकी डायरेक्शन जो आप सोच रहे हो वो कितना रेलिवेंट है और आपका आंसर सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। तो आई वुड ओनली ऐड कि PYQ आप डेली कर सकते हो, दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन। बाकी इट्स अप टू यू कि आपको कुछ और करना है, कुछ और भी कर सकते हो, बट डेली आंसर राइटिंग वन शुड डू। आई डोंट थिंक कि इंटरव्यू आफ्टर द मेंस का स्टेज है, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चंस जनरली डिस्कशन टाइप होता है, आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। कई बार GS टाइप क्वेश्चंस भी पूछे गए इंटरव्यू में, रेलिवेंट करंट अफेयर्स जो भी पूछा जाता है दैट इज़ रिलेटेड टू योर GS ऑल्सो। तो आपको जब इन डेप्थ नॉलेज होगी तभी आप डिस्कस कर पाएंगे इन फ्रंट ऑफ द पैनल मेंबर्स, क्योंकि वो काफ़ी लर्नेड लोग हैं, उनको एक्सपीरियंस है, दे कैन ईजिली सी कि आपको नहीं पता है, बस सुपरफिशियल नॉलेज है। तो इसलिए इस स्टेज पे भी आप जो भी पढ़ो उसको काफ़ी डेप्थ में पढ़ो, डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में उसका फ़ायदा मिलेगा। और एज आई अर्लियर मैंशनड ऑल्सो यू शुड हैव अ हॉबी ऑल्सो, कि हॉबीज़ पे कई बार डिस्कशन होता है इंटरव्यूज़ पे, आप डाफ में भरोगे तो इंस्टेड ऑफ लाइंग कि ये हॉबी है, आप अभी से हॉबी डेवलप कर सकते हो। और वो आपको हेल्प भी करेगा, रिजुमिनेशन का सोर्स होगा कि आप मोनोटोनस पढ़ रहे हो, आपने ब्रेक लिया, कोई हॉबी बन गई वो, और उसको आपने इंटरव्यू में जस्टिफाई भी कर पाओगे। तो इस स्टेज पे यही ज़रूरी है मेरे हिसाब से कि आप जो भी पढ़ो इन डेप्थ पढ़ो, बिकॉज इंटरव्यू में यू विल नीड अ इन डेप्थ नॉलेज। पहला तो न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स पे बहुत एम्फेसिस करना है। उस टाइम पे जनरली लोग 2 न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, और टीवी डिबेट्स वगैरह सुनिए ताकि आपको ये मतलब थोड़ा आइडिया लगे मल्टीपल ओपिनियंस को कैसे टैकल किया जाता है। दूसरा सर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे पॉपुलरली डैफ कहा जाता है, तो उसमें जो जो वर्ड लिखा है उसमें अच्छी रिसर्च होनी चाहिए, आपका होम स्टेट, हॉबी,
हर एक चीज़ पे प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उस पे आप गलत करेंगे तो थोड़ा ख़राब इंप्रेशन जाता है। और थर्ड स्टेज है मॉक इंटरव्यू, जितने हो सकते हैं मॉक इंटरव्यू दीजिए, उसके फीडबैक को आप सेलेक्टिवली देखिए कि क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि सर इंटरव्यू प्रिपरेशन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है इस जर्नी का, क्योंकि पहली बार बोलने का मौका मिलता है। और अभी तक अब तो उस सेंस में सर काफ़ी इनरिचिंग भी है, और काफ़ी सर मैं देखता हूँ बहुत लोग इंटरव्यू कॉल आने के बाद भी डरे रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस टाइम पे एक बिलीफ भी रखना चाहिए कि आपने मेंस क्लियर किया, आप टॉप 3000 में आए, दैट मीन्स यू हैड गुड कैलिबर, यू हैव एवरीथिंग, देयर इज नो नीड टू बी अंडर कॉन्फिडेंट। और इस बार मेरे इंटरव्यू में 204 मार्क्स हैं, Oh, जो great. कि वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो इंटरव्यू है वो उसका नाम ही है पर्सनालिटी टेस्ट, और पर्सनालिटी ऐसी चीज़ होती है जो आप प्री के स्टेज में, मेंस के स्टेज में या इंटरव्यू के स्टेज में नहीं, वो आपकी बचपन से डेवलप होती है। तो आप जैसे हैं वो वहाँ पे इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे रहते हैं, 30-35 ईयर की सर्विस रहती है, 5 साल अगर आप जो 5 मेंबर्स का आप जोड़ें तो 150 ईयर्स हो गया। वो आपकी 5-7 मिनट में आपको जान लेंगे कि आप क्या हैं अंदर से। सो उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू कांट फेक एनीथिंग, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जो आपकी इनहेरेंट पर्सनालिटी है, जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, आप उसी को लिखें और उसी को अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जो आप आपस में भी जो कन्वर्सेशन करते हैं आपकी क्लास में भी, अब जैसे विभास सर के कई सारे डिस्कशन ऐसे होते हैं जो वो डिक्टेट नहीं करते, वो आपसे बातचीत में आपको बोलते हैं। और मैं अपने इंटरव्यू में भी कई जगह वो डिस्कशंस यूज़ करके आया हूँ, जो सर बिल्कुल रैंडम होते हैं, वो सिलेबस के पार्ट नहीं होते, वो डिक्टेशन के पार्ट नहीं होते, बट मैंने वहाँ पे बोले हैं। तो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि जब आप क्लास कर भी रहे हैं तब आपको इतना अवेयर होना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, वो यू नेवर नो। सो मेंटली यू हैव टू बी ऑलवेज अलर्ट। राकेश ने एक सवाल पूछा है, कहाँ है राकेश? हाथ उठाइए जरा। हाँ, आपका सवाल है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दी सीसेट प्रिपरेशन फॉर 2025? सर आई थिंक ये थोड़ा पर्सनल सवाल सब्जेक्टिव है। सर, कि अब आपकी तैयारी के लेवल पे डिपेंड करता है वो। आप मेरे ख्याल से आपका बेस्ट जज, आप एक काम करिए, आप पिछले 1-2 साल के PYQ उठा के लगा के देखिए। अगर आप जैसे 66 हमारी कट ऑफ है, अगर आप उसके क्लोज रेंज में हैं तो यू कैन स्टार्ट 1-2 घंटा अभी से। अगर आप बहुत नीचे लाए कर रहे हैं तो आपको उसके आवर्स बढ़ाने चाहिए। और अगर आप सेफ जोन में हैं कि अगर आपके 90 प्लस आ रहे हैं तो अभी आप NCERTs और स्टैटिक बुक पे फोकस करके विद टाइम आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, एक और सवाल लूंगा, ये आपसे ही रिलेटेड है कि क्या कोई इफेक्ट बैकग्राउंड का होता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड का, इंटरव्यू में? फॉर एग्जांपल कि यू समवन ही इज IITian, आप सब इंजीनियर्स हैं, या कोई रूरल बैकग्राउंड से आता है, तो क्या इस पर बेस्ड कोई एग्जाम के परफॉर्मेंस में या इंटरव्यू की परफॉर्मेंस में कोई फर्क पड़ता है? देखिए, हम लोग कहीं से भी आएँ, वो जैसा मैंने बोला कि इंटरव्यू का जो टेस्ट है वो हमारी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। आप जहाँ से भी आ रहे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनेगा, एंड उससे ज़ीरो फ़र्क पड़ता है वहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी को कितने अच्छे से पोर्ट्रे कर पा रहे हैं। वो जो इंटरव्यू मेंबर्स बैठे हैं वो आपको इसलिए सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं कि भाई आप सिविल सर्वेंट बनने के लायक हैं कि नहीं हैं। एंड सिविल सर्वेंट बनने का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी ये पर्टिकुलर एजुकेशन होनी चाहिए या आपका ये पर्टिकुलर बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर होता तो वो सिविल सर्विसेज वाले अपने सिलेबस में लिख देते। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वहाँ पे ऑनेस्ट रहें, आप फेक नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आती, आप 10 सवाल में बोलिए कि मैम आई डोंट नो, बट अगर आपने एक आंसर में भी फेक किया तो वो आपकी डिसऑनेस्टी दिखाता है, आपका लैक ऑफ इंटीग्रिटी दिखाता है। वो चीज़ आप नहीं कर सकते वहाँ पे। एंड सेकेंड चीज़, एक आपके पर्सनैलिटी का ही पार्ट बन जाना चाहिए हम्बलनेस, कि आप किसी भी चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से बात कर रहे हैं, तो 2-3 मिनट में वो लोग बात करके आपको बता देंगे कि आपकी इनहेरेंट कोर क्वालिटीज़ कैसी हैं, और आपको उस पे फोकस करना चाहिए। एंड लास्टली, लाइक आई सेड, कि आपकी मेंटल अलर्टनेस इतनी होनी चाहिए कि कोई भी कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, जैसे कई सारे आपके फैकल्टीज डिस्कस करेंगे, तो उस कंसेप्ट को भी आप अपने अंदर इम्बाइब करिए कि वो आपका एक पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन जाए, तब वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो पाएगा। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, नाम तो मुझे नहीं रीड कर पा रहा हूँ, कि साइंस एंड टेक इज इवॉल्विंग सब्जेक्ट, इसको कैसे पढ़ना चाहिए? साइंस एंड टेक, हाँ आप आंसर कर दीजिए संचित। साइंस एंड टेक मैंने तो क्लासरूम नोट्स यूज़ किए थे अयाज सर के। तो बेसिकली आपको पढ़ना है तो मैंने NCERTs भी रेफ़र की थी, क्लास 11-12 की। आप बायोलॉजी की NCERT है, केमिस्ट्री की NCERT है, उस पर बेसिक कंसेप्ट्स हैं। और स्पेशली जो इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कई बार केमिस्ट्री NCERT के लास्ट फ्यू चैप्टर्स हैं उससे डायरेक्टली आए हुए हैं।
तो मुझे ये लगता है कि एन ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट क्लास नोट्स, आप सब फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, आपके पास ऑफ कोर्स एक्सेसिबल हैं नोट्स सारे, तो उन दोनों को कंबाइन करिए। और साथ में करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी हैं। मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, बहुत लोग पढ़ते होंगे शायद यहाँ पे। इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज आता है, उस पर जनरली साइंस एंड टेक के काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। एंड इवन लास्ट ईयर या 2021 में मेंस में क्वेश्चन आया था S-400 मिसाइल्स के ऊपर, तो दैट वाज डायरेक्टली फ्रॉम दी एक्सप्लेन, वो पूरा उस पर एक्सप्लेन था और एक्चुअल एग्जाम में वही क्वेश्चन आया। तो अगर आप हिंदू भी पढ़ रहे हैं, उस पर भी सेक्शन होते हैं जो एक्सप्लेन करें टेक्नोलॉजीज़ को। सो न्यूज़पेपर रीडिंग यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज़ अभी आ रही हैं या डेवलप हो रही हैं, 5G है, रोबोटिक्स है, AI है, वॉट एवर इट इज़, वो इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। बहुत लोगों से AI के ऊपर क्वेश्चन हुए हैं, डिस्कशन हुए हैं। तो नॉट ओनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके नॉट ओनली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऑल्सो फॉर मेंस, क्योंकि वो सेक्शन GS3 में आएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू में भी साइंस एंड टेक पे बहुत क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज एज अ सिविल सर्वेंट यू शुड बी अवेयर ऑफ डेवलपमेंट्स। और साइंस एंड टेक ऐसी चीज़ है जो हमेशा डेवलप हो रही है कंटिन्यूसली, इट्स इवॉल्विंग, डेवलपिंग, और उसका फ्यूचर स्कोप है। रेगुलेशंस कैसे हों, स्पेशली AI, हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से रेगुलेशन नेसेसरी हैं, कितने एक्सटेंड तक नेसेसरी हैं। एंड बीइंग अ सिविल सर्वेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आप लोग की होगी कि उसको रेगुलेशंस कैसे हों, कैसे फ्रेम हो। तो हैविंग ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और न्यूज़पेपर बेस्ट सोर्स होगा। और जैसा मैंने बोला, मैंने क्लास नोट्स यूज़ किए, अलॉन्ग विद दैट NCERTs पढ़ी थी साथ में। एक एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन मेरे पास आया है कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, अब वो पूछ रहे हैं ऑनलाइन अच्छा है पढ़ने के लिए, ऑफलाइन अच्छा है। आपने आपने भी शायद जॉब के साथ ऑनलाइन करा है, ऑफलाइन करा है, कोई किसने, आपने? अच्छा, मैंने आपने किया था, आप ही दे दीजिए आंसर इसका। ये तो पर्सनल चॉइस है। मैंने ऑनलाइन प्रेफर किया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और ऑल्सो ऑनलाइन पे आप अपनी पेस खुद से डिसाइड कर सकते हैं, वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कुछ टॉपिक्स मुझे ऑलरेडी आते थे, तो मैंने उसको 2x पे देख लिया। जो चीज़ें समझ पे नहीं आती थी उनको मैंने 1x पे देखा या पॉज कर करके देखा। और मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने 1 घंटा क्लास की कभी ब्रेक में, फिर बाद में कर लिया। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी वॉज समथिंग जो मैं सीख कर रहा था, तो मैंने ऑनलाइन किया। बट इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू कि अगर आप, कई लोग होते हैं ऑनलाइन में नहीं पढ़ पाते, उनको एक सेटअप चाहिए क्लासरूम का कि बैठ के पढ़ाया जाए, तो उनके लिए ऑफलाइन इज़ बेस्ट। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, आपको जो बेटर लगता है। ऑनलाइन से आप पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन अच्छा लग रहा है, ऑफलाइन से पढ़िए। बस द अल्टीमेट थिंग इज़ यू हैव टू स्टडी, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू दैट। हाँ, इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन तो एक मीडियम है, दैट इज मोड ऑफ स्टडी। हाँ, पढ़ना है। डेफिनेटली पढ़ना है बस, चाहे ऑनलाइन पढ़ें, चाहे PDFs में पढ़ें या हार्ड कॉपी में पढ़ें, इट्स टोटली पर्सनल चॉइस। प्रिपरेशन अगर टोटल 100 के स्केल में नापे तो 5-10 जो इनिशियल 5-10 स्टेप्स लेने होते हैं पूरे 100 स्टेप में, या 5-10 या 20 स्टेप्स, वो उसमें कोचिंग असिस्टेंस प्रोवाइड कर देगी, लेकिन रेस्ट 80 स्टेप्स चलना तो खुद ही पड़ेगा। खुद ही पड़ता है। तो ये रोल है सर। एंड वो 5-10 स्टेप्स आप चाहें तो खुद से भी। कोचिंग का रोल इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि अब जैसे तुम अगर अपने लिए एक एग्जांपल लेना चाहोगे, तो अगर किसी का पॉलिटी नहीं हुआ होगा अभी किसी बैच में, तो वो एक बार लक्ष्मीकांत को पढ़ के देखना और उसके बाद क्वेश्चन करना, और एज़ कम्पेयर टू तुम एक लेक्चर लगाओगे उसके बाद फिर से उसी चैप्टर को पढ़ के देखना, और तुम देखना कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग का लेवल कितना अच्छा होता है, कैसे स्मूथ तुम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कोचिंग प्रोवाइड करती है। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी मैनेज करने में। एंड ये मैंने सर के साथ जो सेशन क्लास मतलब 1-2 दिन पहले जो एक और सेशन हुआ था उसमें बोला भी था कि मेरे को इतनी तकलीफ़ होती थी कि मेरा क्लास कॉलेज का टाइमिंग रहता था 8 बजे से 12 बजे तक, फिर 1-2 घंटे का लंच रहता था, फिर 2 से 5 बजे तक लैब्स होती थी। लैब्स भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको लैब्स में प्रेजेंट रहना पड़ता था और डिफ़िकल्ट था। एंड देन 6 o'clock से कोचिंग रहती थी, 6 to 9 क्लासेस होती थी, और तो मेरे को ट्रैवल करना, फिर 9:30 को मैं वापस आता था, 10 बजे तक सो जाता था, फिर 8 बजे से दिन। तो दोज 10 months वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। एंड मैं कोचिंग के जो नोट्स थे वो मैं पढ़ भी नहीं पाया था अच्छे से, बस ब्लाइंडली लिख लेता था जो क्लास में था। कई बार क्लासेस मैंने छोड़ भी दी। आई वॉज दैट इनसिंसियर एंड आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज इट। बट कोविड का जो लॉकडाउन था 5-6 महीने का, उसमें कॉलेज की क्लासेस बंद हो गई थी, तो उसमें मैंने वो 10 महीने का जो था टाइम, वो 10 महीने के जो नोट्स वोट्स थे या क्लास छूटी थी वो कवर कर लिया था। एंड दैट वाज द फाउंडेशन फॉर माय GS प्रिपरेशन।
एंड ऑप्शनल के लिए ऐसा था कि 8 सेमेस्टर हम लोग के यहाँ पे ऐसा होता था कि हम लोग डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं पहले, 7 सेमेस्टर तक जॉब भी लग जाती थी, 8 सेमेस्टर वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी, सो उस टाइम पे मैंने ऑप्शनल कर लिया था। और जॉब के साथ मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि इट वाज लाइक वो 70 आवर्स अ वीक का डिबेट चलता है ना, सो इट वाज इजीली अ 70 to 80 आवर्स अ वीक टाइप ऑफ जॉब, तो उसके साथ तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था। बट मैंने रिज़ाइन किया तो उसके बाद 2 महीने का टाइम था प्रीलिम्स के लिए, तो उस टाइम पे जो मैंने पहले नोट्स बनाए हुए थे उसको मैंने रिवाइज़ कर लिया, टेस्ट दे दिए। एंड जो 3 से 4 महीने का टाइम था मेंस के बीच में, उसमें वहीं 45 टेस्ट लिख लिए, और सारे जो नोट्स, क्योंकि मेरे कॉलेज ख़त्म होते होते तक सारे नोट्स एटलीस्ट बन गए थे, मैं सिलेबस पूरा गो थ्रू कर चुका था, और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी होती थी वो मैं पढ़ लिया था। लेकिन ये तो मेरी स्टोरी थी, बट आपके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कॉलेज लाइफ ये ठीक है, लेकिन आप फर्स्ट सेकंड ईयर से अगर स्टार्ट करते हैं तो आप 2 घंटे भी अगर डेली देंगे ना, तो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के लास्ट आते आते आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो 2-2 घंटे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होकर लास्ट तक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, एंड काफ़ी आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस होगा कॉलेज लाइफ, लेकिन वो आपको डिसीजन लेना है। सी इफ़ यू वांट टू प्रायोरिटाइज कॉलेज लाइफ, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। आप मतलब कॉलेज में पूरा एंजॉय करिए और बाद में आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग कि सबको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही करना है। ऑल्सो अगर आप तब वही लोग सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करें, दे आर हु आर वेरी श्योर कि दे वांट टू डू यूपीएससी। इफ़ यू हैव सम अदर प्लान्स और यू आर इन टू माइंड्स कि आपको कुछ और भी अच्छा लगता है, फर्स्ट गो एंड एक्सप्लोर दैट। व्हेन यू गो देयर, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मत दीजिए एग्जाम, अगर आपको वो करके भी ऐसा लग रहा है कि नहीं शायद मुझे सिविल सर्विसेज लिखना चाहिए, तब आप आइए। एंड सो क्रक्स ऑफ द माई मोनोलॉग इज कि आप अर्ली स्टार्ट तभी करिए व्हेन यू आर वेरी श्योर ऑफ राइटिंग दिस एग्जाम। बहुत ज़्यादा डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ। 2 घंटे आप निकाल पा रहे हैं कॉलेज के साथ, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है कॉलेज के दौरान ही, क्योंकि 2-3 साल का टाइम रहता है, हम लोग स्टूडेंट्स ही रहते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, तो आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कॉलेज लाइफ हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, सो यू हैव टू मेक दैट चॉइस वेदर वो ट्रेड ऑफ कितना है, आपको कितना हद तक वो आप कॉम्प्रोमाइज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक और हाँ, आपके साथ एक सवाल है तो वो आप भी आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन है किसी का कि शुड वी ऐड अवर पोइम राइटिंग इनपुट इन आवर आंसर राइटिंग इन एथिक्स एंड ऐसे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड आर है, मतलब अवर लिखा है किसी ने, तो वो हो सकता है कि उनकी एक हॉबी हो, तो जिसकी हॉबी है पोइम राइटिंग उसके लिए तो बहुत ही अच्छी एडवांटेज है, क्योंकि तुम इजीली ऐड कर सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है। बट अगर किसी की हॉबी नहीं है खुद से पोइम राइटिंग, तो उसके लिए ऐड करना थोड़ा मुश्किल है, तो तुम 2-3 मतलब जैसे दोहे होते हैं तो उनको थोड़ा याद करके लिख सकते हो, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम जो अपनी स्ट्रेंथ होगी उसको लिख सकते हो, कोट्स लिख सकते हो, मतलब टॉपर्स के मार्क्स बिना कोट्स लिखे भी आए हैं, कोट्स के साथ भी आए हैं, तो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो लिखना। ऐसे में खुद को एक्सप्रेस जितना हो सके उतना करना। Yeah, one question is with you also. The question is that since we are yet in the preparation stage, what should our day look like? As in revising the class notes, but along with that, what all should be done? तो देखिए, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है? अभी आप लोग के पास टाइम है, यू आर गोइंग टू राइट इन 2025, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। वो आइडियली मेरे हिसाब से आपका स्टेज ये होना चाहिए कि आप अपने दिन को 4 स्लॉट्स में डिवाइड करिए। जो भी आपके, अब जैसे आपकी क्लास शाम की है तो आप उसके अकॉर्डिंग टाइम बनाइए। एक स्लॉट आपका जाएगा यहाँ की क्लास का, एक स्लॉट आपका जाएगा ऑप्शनल की क्लास का, एक स्लॉट आपका जाएगा जो आपके फाउंडेशन कोर्स में सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उस सब्जेक्ट की आपको स्टैटिक बुक खुद से पढ़नी है, एनसीईआरटी हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, जो भी बुक्स हैं, एक स्लॉट आप उसका रखिए और एक स्लॉट आप रखिए जिसमें आप अपना ऑप्शनल खुद से पढ़ेंगे। अब अगर मान लीजिए इन दोनों में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो फॉर द टाइम बीइंग, जैसा मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट आपका क्लास में चल रहा है आप उस सब्जेक्ट में पीछे नहीं हो सकते। तो अगर कभी ऐसा हो रहा है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट चल रहा है जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप भले ही उस दिन अपना एक जो ऑप्शनल वाला स्लॉट है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिए, बट जीएस का उस दिन 2 स्लॉट रख दीजिए जो आप यहाँ पे क्लास में पढ़ाया जा रहा है, बट आप इसमें कभी पीछे नहीं हो सकते। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, आप जब क्लास में आ रहे हैं थोड़ा जल्दी आइए और उससे पिछले दिन का जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आप क्लास में रिवाइज़ करिए। और क्योंकि आपने एक ही दिन पहले पढ़ा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30, 35, 40 मिनट्स में आपको पूरा क्रिस्प याद हो जाएगा। एंड 1 घंटा 24 घंटे में से कभी भी निकाल लीजिए फॉर द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में अगर आपको अपना टाइम कम करना है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, मैं ये करता था कि हमारा नेक्स्ट आईएएस पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे का एक वो आता है, लिंक आती है, तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस होती हैं वो पढ़नी होती है।
तो मैं क्या करता था कि इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू इंटायर न्यूज़पेपर, मैं सुबह 11:30 के आसपास हमारा आता था और मेरी क्लास भी उसी टाइम के आसपास ख़त्म होती थी। तो मैं घर जाते ही सबसे पहले वो खोल के उसमें जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती थी वो टिक कर लेता था, उनको उनको पढ़ता था। दैट वुड हार्डली टेक 35-40 मिनट्स। और उसके बाद पूरे न्यूज़पेपर का एक बार खुद से ग्लांस मार लेता था कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे पर्सनल इंटरेस्ट है या कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझे लग रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट है या मिस हो गया, उसको पढ़ लेता था। तो ये आपको 6 चीज़ें करनी है बस। 30 मिनट्स पिछली क्लास का रिवीजन करना है, 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्लासेस 2 आपकी चलेंगी वो आप रेगुलर करिए, और 2 स्लॉट आप दिन में कभी भी निकाल लीजिए, 1 स्लॉट जीएस के लिए, 1 स्लॉट ऑप्शनल के लिए। और मेरी आपको पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि प्लीज़ किसी भी सर्कमस्टांस में क्लासेस मिस मत करिएगा। ये जो आपका अगला 1 साल है, ये आपका डिफाइन करेगा कि आपका एग्ज़ाम 1 साल में निकलेगा कि 4 में निकलेगा कि 6 में निकलेगा। तो कुछ भी करके please try to complete your classes and complete your static subjects along with it. So this question was addressed to me कि what should be the revision strategy. तो निशांत more or less covered everything कि revision कैसे करना है. I would just like to add कि basic फंडा यही है कि आपकी 2 successive reading of any subject बहुत बड़ा टाइम गैप नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने आज इकोनॉमी पढ़ा, 1 महीना आप इकोनॉमी पढ़े, पूरा सिलेबस हो गया, आपने रख दिया उसको, 2-3 महीने आपने देखा भी नहीं, तो यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो. आपको रिविजन बहुत ज़रूरी है, आपको टाइमली रिवाइज करना है चीज़ों को, वरना वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा बाद में कि आपको ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट कर करके बार बार वही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी. और मेंस की जहाँ तक बात है, वहाँ पे ज़रूरी है कि आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी बैलेंस्ड हो बिटवीन जीएस एंड योर ऑप्शनल. तो मेरे केस में मैंने हमेशा अपने फर्स्ट 4 डेज ऑफ द वीक में रखता था फॉर जीएस 1 2 3 4, और जो बाकी टाइम बचा दैट आई यूज्ड टू डेडिकेट टू माय ऑप्शनल एंड ऐसे राइटिंग. तो वो डिपेंड करता है पर्सनली आपको क्या स्ट्रैटेजी सूट करती है, बट डेफिनेटली देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन योर ऑप्शनल एंड योर जीएस, एंड विच मोर और लेस निशांत ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सो आई वोंट से मच ऑन दैट. तो बेसिकली यही है बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर रिविजन एज फार एज कंसर्न. आप लोगों से मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे हर सब्जेक्ट, अभी हमने जैसे साइंस टेक की बात की थी, वैसे ही अगर ब्रीफली कि हिस्ट्री में कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी में कैसे पढ़ना है, पॉलिटी में कैसे पढ़ना है और इन्वायरमेंट कैसे पढ़ना है, तो ऐसे अगर एक एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा ब्रीफ में अगर बता दें, सो दैट दे कैन मेक ए बाउंड्री कि हाँ हमें ये सोर्सेज पढ़ना है और ये हमें प्राइमरी सोर्स हैं, ये हमारे सेकेंडरी सोर्स है, या एक एक सब्जेक्ट जो भी आप लेना चाहें. तो जैसे अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, क्योंकि काफ़ी फेमस सब्जेक्ट है, स्कोरिंग भी है प्री के रिगार्डिंग, तो पॉलिटी में ऐसा रखना कि बेसिक तो तुम्हारा ठीक होना ही चाहिए. क्वेश्चन इन द एंड बेसिक क्वेश्चंस पर ही बात आ जाती है. आजकल बात ये हो रही है कि मतलब जैसे पहले लॉ से क्वेश्चन नहीं पूछते थे, जितने भी लॉज हैं हमारे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से फोकस ज़्यादा पेपर आता था. लेकिन अभी भी अगर तुम पेपर का क्रक्स उठा के देखोगे तो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन से ही आ रहा है. लॉ पर क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन जाएंगे, लेकिन उन पर कम फोकस करना. लेकिन जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो एक वो आता है, बेयर एक्ट बोलते हैं उसको, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी लक्ष्मीकांत करनी है, लोग बोलते हैं आउटडेटेड हो गई है, मैं समझता हूँ कि अभी भी रेलेवेंट है, स्पेशली प्री के लिए तो बहुत रेलेवेंट है. बाकी मेंस के लिए पॉलिटी में नीरज सर काफ़ी अच्छा कंटेंट देते हैं, और मैक्सिमम जो पोर्शन है वो जो नीरज सर कवर करेंगे वहीं से आता है. मतलब जो आशीष सर कवर करते हैं पोर्शन वो ज़्यादा प्री फोकस्ड है, इसलिए मेंस के लिए नीरज सर के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं. तो यही है पॉलिटी में. और जितने पॉलिटी के ज़्यादा टेस्ट लगा लेना, उनके जो सॉल्यूशन होंगे उनसे तुम वैल्यू एडिशन कर सकते हो. बट पॉलिटी में ध्यान रखना क्वेश्चंस गलत ना हो. या सौरभ, वुड यू लाइक टू शेयर एनी सब्जेक्ट स्ट्रेटजी? Sir, let's pick one history. So history is the most dreaded subject कि बहुत मतलब उससे तकलीफ होती है लोगों को, मुझे भी बहुत होती थी. तो सर जैसे मेडिवल हिस्ट्री मैं पढ़ नहीं पाया था तो मैंने स्किप कर दिया था, बहुत कम पढ़ा था. अगर आपको करना भी है तो बहुत स्पेसिफिक, जैसे पॉलिटिकल उसमें वो नहीं इम्पोर्टेंट है कि रज़िया सुल्तान के बाद कौन है, इल्तुतमिश के बाद कौन बना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. मेन उसमें इकोनॉमिक टर्म्स इम्पोर्टेंट होती है कि उस टेन्योर में मुगल में या दिल्ली सल्तनत में लैंड का क्या नेम था, अलग अलग लैंड टेन्योर सिस्टम क्या थे, उसके टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सर वो नेक्स्ट आईएएस के बुक में उसका ग्लॉसरी में लास्ट में रहता है. सर मैंने ट्राई किया था, मैं उतना पढ़ नहीं पाया था. तो सर मैं ये भी दिखाना चाहता था कि सर ऐसा नहीं है कि सब लोग सब कुछ पढ़ पाते हैं, मतलब कई बार चीज़ें छूट भी जाती हैं. एंड सर एंशियंट आर्ट एंड कल्चर के लिए सर राहुल सर ने काफ़ी अच्छे क्रिस्प नोट्स बनाए हैं. तो वो काफ़ी मतलब कम पेजेस के हैं, ऑल्दो काफ़ी इन्फॉर्मेशन डेंस है, मतलब उनके एक एक पेज से
20-20 क्वेश्चन बन सकते हैं, बट वो वन स्टॉप शॉप है उसके लिए। एंड सर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबको पता है कि वो स्पेक्ट्रम पढ़नी है, एंड सर मैंने भी वहीं पढ़ी थी। अगर आपको इंटरेस्ट है या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ने में तकलीफ हो रही है तो बिपिन चंद्रा की जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, वो भी मैंने पढ़ी थी, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि 1920s के बाद का उतना डिटेल से दिया नहीं हुआ है जो ओल्ड एनसीईआरटी है। और बिपिन चंद्रा की एक और थोड़ी थिक बुक आती है, तो वो पूरी स्टोरी फॉर्मेट में लिखी हुई है। वो थोड़ा डिटेल्ड है, तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो मैंने मेंस के बाद ऐसे जस्ट फॉर अ रीडिंग पर्पस 2-3 चैप्टर पढ़े थे तो मुझे अच्छा लगा था। लेकिन स्पेक्ट्रम अभी भी काफ़ी गो टू सोर्स है, और उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, याद आपको करना ही पड़ेगा, बार बार पढ़ के, स्टिकी नोट्स बना के, हाईलाइट करके, टेस्ट उसका दे के, फिर रिविजन करके, उसके पीछे का टेबल समरी पढ़ के वो याद करना ही पड़ेगा। तो सर मुझे लगा ये एड्रेस कर जाएगा। या आप इकोनॉमी सर इकोनॉमी के लिए आई वुड सजेस्ट कि मैंने तो विभास सर के क्लासेस से अपने नोट्स बनाए थे, दैट इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड सोर्स आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इफ़ यू सी द PYQs कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं ऑन वेरी कंसेप्चुअल की बेसिस क्या है चीज़ों के, तो वो आपको विभास सर के नोट से बहुत अच्छे से मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट मैंने उसको कपल किया था न्यूज़पेपर रीडिंग, जो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं RBI से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट या फाइनेंस में जो नई चीज़ें हो रही हैं, इंक्लूडिंग बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, एवरीथिंग यू हैव टू रीड। इकोनॉमिक सर्वे की समरी भी मिल जाएगी आपको, या तो इफ़ यू हैव टाइम यू कुड रीड इट फुल। और उसके अलावा विभास सर का टेलीग्राम चैनल भी है, आई यूज़ टू फॉलो दैट, तो उस पर भी सर रेलिवेंट चीज़ें पोस्ट करते हैं रिगार्डिंग क्या रेलिवेंट चीज़ें अभी चल रही हैं या ये सब। तो इकोनॉमी मोर और लेस मैंने यहीं से कवर किया था। एंड कंसिडरिंग जोग्राफी ऑल्सो, जोग्राफी में बहुत ज़रूरी है कि यू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैप्स, स्पेशली इंडिया का फिजिकल मैप की कहाँ पे कौन रेंजेस हैं या वाटर रिसोर्सेज हैं। बहुत बार क्वेश्चन आए हैं इस पे, 2022 आई गेस मैच द फॉलोइंग में आए थे वाटर रिजर्वॉयर्स। तो ये अंडरस्टैंडिंग आप तब आएगी जब आप मैप आपके सामने है, आपके स्टडी टेबल के सामने आप रखो, उसको रोज़ देख रहे हो, क्योंकि इट इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग कि आपने एक बार देखा और मैप याद हो गया, वो तो नहीं होगा और करना भी नहीं है। आप रोज़ रोज़ मैप देख रहे हो तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, एक आइडिया रहेगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट वर्ल्ड मैप भी इंपॉर्टेंट है, तो जोग्राफी में मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और वो ज़रूर कवर कर लेना आप लोग। दैट्स एक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एक सब्जेक्ट है, और मॉडर्न हिस्ट्री में आपने क्या सोर्सेज फॉलो किए, या और कोई एरिया जो आप ऐड करना चाहें? मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ आपको कि आप कोई भी सब्जेक्ट उठाएं। देखिए हमारे स्टैटिक के 6 मेन सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक। इसके अलावा 7वां बचता है करंट अफेयर्स। अब 6 के 6 सब्जेक्ट का अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे, हर सब्जेक्ट का इक्वल इंपॉर्टेंस है, हर सब्जेक्ट से 15-20 क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हर सब्जेक्ट को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। हम लोग क्या करते हैं कि 4 महीना पॉलिटी पढ़ ली, फिर एंड में लगता है टाइम कंस्ट्रेंट है तो डायरेक्ट 1 महीने में इन्वायरमेंट करके ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। सेकेंड चीज़, हर सब्जेक्ट का जो आपका बेसिक सोर्स होना चाहिए वो आपके क्लास नोट्स होंगे, क्योंकि जो आपको क्लास में लिखाया जा रहा है दैट इज़ प्रॉपर रिसर्च्ड है, प्रॉपर रिफाइंड है और एग्ज़ाम रेलेवेंट है। और होता क्या है कि यहाँ पे मार्केट में इतना ज़्यादा रिसोर्सेज है कि अभी आप 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद जाओगे तो आप कंफ्यूज होने लगोगे कि मैं इसके लिए ये भी पढ़ लेता हूँ, पीटी भी कर लेता हूँ या किसी ये उठा लेता हूँ। आपको उस चीज़ से बचना है, आपको अपनी रिसोर्सेज पे सबसे पहले तो भरोसा रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी मेन सोर्स क्लास नोट्स को बनाएं। उसके बाद जैसा हम लोगों ने शुरुआत में भी डिस्कस किया था कि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, जैसे आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी या आपने किसी भी सब्जेक्ट की स्टैटिक बुक है जैसे लक्ष्मीकांत है या शंकर आईएएस है या जो कोचिंग मटेरियल मिलता है, उसमें से अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा है तो उसको भी आप अपने क्लास नोट्स में ही ऐड करिए। ऐसा मत करिए कि एक रजिस्टर इसका बना लिया, एक रजिस्टर इसका, फिर एंड में रिवीजन में प्रॉब्लम होती है। तो आप अपनी रिसोर्सेज को कंसाइड रखिए, एक ही जगह उसको ऐड करते जाइए। और उसके अलावा जो आपकी थर्ड रिसोर्स होगी, जैसे मैंने बताया किसी भी सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास नोट्स, सेकंड है आपकी स्टैटिक बुक्स, और थर्ड चीज़ जो भी आपको उसमें ऐड करनी होगी वो आपकी ऐड होगी मॉक टेस्ट जो आप देंगे और आपके PYQs के थ्रू। किसी भी सब्जेक्ट का आप अपना ये 3 लेयर बना के चलिए। और उसके अलावा जो आपको हेल्प करेगा, आप किसी भी सब्जेक्ट का अगर 4 रिसोर्स पढ़ रहे हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप 2 रिसोर्स को पढ़िए लेकिन उसको 2 बार पढ़िए। सो प्री का मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पिछली बार कट ऑफ 88 गई थी, आई स्कोर्ड अराउंड 100, एंड इस बार भी कट ऑफ 75 है, आई स्कोर अराउंड 92 या 93। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने अपनी सोर्सेज को बहुत कंसाइज रखा, कि मैंने अपने क्लास नोट्स पे भरोसा किया, उसके बाद मैंने स्टैटिक बुक्स पढ़ी और उसके अलावा जो भी मैंने दिया सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, एंड इट विल बी इनफ, ट्रस्ट मी।
देखिए अभी जितना भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इसमें कुछ चीज़ें तो बड़ी कॉमन हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो क्लास नहीं मिस करना है, आपको क्लास में अपने नोट्स बनाना है, नोट्स ऐसे बनाना है कि उसमें फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप हो। आपको नोट्स इस तरह से लिखना है कि वो उसमें वैल्यू एडिशन किया जा सके। दूसरा रिलीजियसली आपको रिवीजन करना है कि आपने यहाँ से जाने के बाद, जैसे बताया इन्होंने, कि आप ना रिव्यू करिए अपने उस लेक्चर को, फिर कैसे आपको 4 पार्ट में या 5 पार्ट में अपना सेल्फ स्टडी का पूरा 24 आवर्स का शेड्यूल बना देना है। फिर जो सोर्स ऑफ स्टडी है वो लिमिटेड रखिए, और लेकिन उन लिमिटेड सोर्सेज को आप मल्टीपल टाइम पढ़िए। नहीं तो बहुत सारी ऐसी किताबें उठा करके ले आओगे और आप एक बार पढ़ के फिर छोड़ भी दोगे, लेकिन उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। फिर वो जो इन्होंने कहा ना कि सोर्सेज को लिमिट कर दो, ये बचना है। फिर सोशल मीडिया में जो आपकी प्रेजेंस है वो डिसिप्लिन्ड होना है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दीजिए और बिल्कुल दूर भाग जाइए, इतना इतना ऐसा कुछ नहीं है, इतना टेरर नहीं है अभी सोशल मीडिया का, वहाँ बहुत कुछ सीखने को हो सकता है, बट अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। एक फिर ना अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी रखिए कि चीयरफुल, हंसमुख, सीखना है। यहाँ पर ना हम रिसर्च करने के लिए नहीं आए, लेकिन एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आए हैं। इसलिए किसी एक सब्जेक्ट में जाकर के बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे देना कि जैसे इन्होंने बोला कि 4 महीने पढ़ते रहेंगे एक सब्जेक्ट को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। फिर फर्दर टाइम मैनेजमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सभी का ये कहना है कि देखो अगर आपने अपने 1-1 घंटे का हिसाब रख लिया अपने जीवन में इस समय 1-2 साल, तो समझ लो कि यही 1-1-2 घंटे ऐड होकर के कितने घंटे बन जाएंगे। फिर आंसर राइटिंग पे जैसे सर ने कहा कि आंसर राइटिंग को अभी से स्टार्ट कर दो। आप कभी एक आंसर लिख लिया या जो टॉपिक आपने पढ़ा उसका लिख लिया, ऐसे लिखते लिखते आप मल्टीपल लिखते जाओगे, हो जाएगा। अब इनका कहना था कि मैंने 4 ही टेस्ट लिखे, इनका कहना था कि मैंने 40 टेस्ट लिखे। तो ये सबका अपना एक प्लान है। और दूसरा आपके टाइम पर डिपेंड करता है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट लिख रहे हो या फोर्थ अटेम्प्ट लिख रहे हो या सेकंड अटेम्प्ट लिख रहे हो। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। दिस इज नॉट अ फैक्ट्री कि एक जैसे प्रोडक्ट निकल रहे हैं, अगर कोई प्रोडक्ट निकल के आ गया तो फिर ऐसे ही होगा। तो ये सब ना वेरिएबल है। यू आर ए यूनिक पर्सनालिटी, आपकी यूनिकनेस ही आपकी स्ट्रेंथ है। अब आपको करना क्या है, आपको अपने आप को स्टडी करना है, आपको एग्जाम को स्टडी करना है। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, उस गैप को आपको ब्रिज करना है। इसलिए एग्जाम को बहुत अच्छे से समझ लो, एग्जाम क्या चाहता है, हमारी क्वालिटीज कितनी है, अब इस गैप को ब्रिज करते हैं। ट्रस्ट रखो अपने आप पर भी, अपने रिसोर्स पर भी। जो यहाँ पर टीचर्स पढ़ाते हैं नेक्स्ट आईएएस में, ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। किसी जगह आप जाओगे एक टीचर अच्छा हो सकते हैं, 2 अच्छे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कहता हूँ सारे ही अच्छे हैं। इसलिए आप पूरा ट्रस्ट रखिए। प्रूवन एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने यहाँ से पढ़ करके 1 साल में ही क्रैक किया है। इसलिए ट्रस्ट पूरा अपने आप पर रखो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि जो हमारा अपना मोटिवेशन है, जो हमारे अंदर से आता है कि भाई मेरे को तो करना है, इसलिए मुझे उन सारी बलाओं से बचना है जिनको ये अट्रैक्शन कर रहे थे या कोई डिस्ट्रैक्शन कर रहा था। तो वो डिस्ट्रैक्शन और अट्रैक्शन वाली जो बलाएं हैं, उन बलाओं से कैसे दूर रहना है, और वो भी कितने दिन के लिए, सिर्फ 2 साल के लिए। अब मैं बलाओं कह रहा हूँ, उसमें बड़ा बा नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए वो आप ध्यान रखना। वो सबके लिए है, इधर और उधर के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं एक के लिए है। तो वो थोड़ा अभी अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। और एक बहुत अच्छी बात है, मैंने इनके साथ देखा, आज तो इनके दोस्त नहीं आए हैं, लेकिन इनके साथ में कल परसों 3-3 2 4-4 इनके दोस्त भी साथ में आ रहे थे। वो जो सपोर्ट सिस्टम होता है पीयर ग्रुप का, ये मैचेबल नहीं है। आपके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट, आपके पीयर ग्रुप का सपोर्ट और आपके टीचर्स का सपोर्ट, अगर ये 3 सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है, आप पहाड़ खोद करके भी आईएएस का आई और ए और एस वहां से निकाल सकते हो। दिस इज फैक्ट। इसलिए अच्छे दोस्त बनाओ, 3-4 लोग ऐसे सेलेक्ट करो जो आपको हेल्प करें, आपको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। टीचर से लगातार अपना रेपो बिल्टअप करो। मैं एक ना स्टोरी स्टूडेंट की बता रहा हूँ। ये मेडी जी के स्टूडेंट था, उसका मैं टॉपर स्टॉक ले रहा था इंजीनियरिंग सर्विस में। वो है मेडी जी के चैनल पर है। तो बोल रहा था कि मैं रोज क्लास के बाद सर से मिलता था, लेकिन मेरे को कोई डाउट नहीं होता था। मैं सिर्फ इसलिए जाता था कि मेरा चेहरा सर को याद रहे, और मैं यहाँ बैठा हूँ तो चेहरा जब मेरा याद रहेगा तो सर ना मुझे कंट्रोल करते रहेंगे। अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ या इधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ, तो सर कम से कम मेरे को टोक देंगे। तो एक्चुअली टीचर से रेपो है ना, वो रेपो आपको बहुत पे करती है। जब आप टीचर से बात करते हो, कभी आपको डाउट आ गया, आप हेजिटेट नहीं करोगे, आप रात में भी सवाल लिख दोगे। मैं अपने पास बता रहा हूँ, बीइंग दी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेक्स्ट आईएएस, मेरे पास पर डे कम से कम 50 से 60 टेलीग्राम में मैसेजेस आते हैं पर डे, एंड आई रिप्लाई टिल लेट नाइट।
एंड आई फील वेरी हैप्पी, ये हर टीचर के साथ है। टीचर्स को जब आप लिखते हो तो उनको बुरा नहीं लगता, उनको अच्छा लगता है। आप तभी उनके पास जा रहे हो जब आप उनको अपना मानते हो, और टीचर्स आपको अपना बच्चा समझ के गाइड करते हैं। यू आर चिल्ड्रन फॉर देम। दूसरा, आप थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर हो, अपने घर से यहाँ पर आए हो, अब यहाँ आपके लिए सपोर्ट के लिए कौन है? तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी आर योर गार्जियन, वी आर योर टीचर, वी आर योर फ्रेंड्स। कभी यहाँ पर कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि आप डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, लो फील कर रहे हो, और तो वो ऐसी सारी चीज़ों से दूर हटने का बेस्ट तरीका है टीचर से बात कर लो, दोस्तों से बात कर लो, घूम लो, खेल लो। अब आईपीएल चल रहा है तो स्कोर देखना तो बनता है ना, मैच देखना तो नहीं बनता, ठीक है? स्कोर तो देख ही सकते हैं ना। तो अपने आप को लाइव रखो, डल मत कर दो। ये सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन एक ना ऐसा नहीं है कुछ कि ये अलग दुनिया में जा करके पढ़ाई करनी है, यहीं पढ़ना है, यहीं रहना है। और ये राजेंद्र नगर, करोल बाग जो आपको थोड़ा कंजेस्टेड, एक्सपेंसिव, एक्सेसिव एक्सपेंसिव ये सब लग रहा हो, इतनी महंगी फीस, ये 2 साल बाद जब आप सफल हो जाओगे ना, उसके बाद लगेगा कि यही सबसे अच्छा था। इसलिए ये टाइम बदलेगा, आपका आपके एफर्ट पर डिपेंड करेगा कि ये 2 साल में बदलेगा, 1 साल में बदलेगा, 3 साल में बदलेगा, बट टाइम विल चेंज। हमारा टाइम बहुत ज़्यादा नहीं परमिट कर रहा है, लेकिन अब लास्ट में मैं सभी रैंकर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आप सजेशन, गाइडेंस, इनपुट, स्ट्रैटेजी, टिप्स जो भी आप शेयर करना चाहते हो, वो आप सब लोग अपने अपनी बातें इन सबके साथ शेयर कर दीजिए। सर, जैसा है कि आपने कहा कि हर दिन मतलब जब से मैं दिल्ली में आया, मैं 3-4 दोस्त या फिर मतलब मिलना तो वैसे कई लोगों से होता है, बट 3-4 लोग ऐसे थे जो दिन भर मेरे साथ रह लेते थे। और सर, ये मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है कि एक पॉजिटिव सेट ऑफ पीपल अगर आपके पास में है, बिकॉज ये मैंने कहीं एक बुक में पढ़ा था कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आपकी जो पर्सनैलिटी है दैट इज़ एवरेज ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। तो इफ़ यू हैव गुड पीपल अराउंड यू, पॉजिटिव पीपल अराउंड यू हु कैन मोटिवेट यू, हु कैन पुश यू फर्दर, हु कैन give you the cushion, it will help immensely in tackling the stress which is there in this exam. और उन सब लोगों को हटा दीजिए अपने लाइफ से जो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते या फिर बहुत टफ एग्जाम है, क्या कर रहे हो, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं या कह रहे हैं यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, वो सब चीज़ें हैं टू एन एक्सटेंट, बट जो ये रोज़ रोज़ आपको याद दिला रहे हैं उन सब लोगों से दूर हो जाइए और अपने आप को बस उन्हीं लोगों से जुड़ा रखिए जो सच में आपकी सफलता में खुश होंगे। तो इन द एंड मैं यही बोलूँगा कि स्ट्रेटजी अपनी ही होगी तुम्हारी, हमारी किसी की भी कॉपी पेस्ट नहीं होगी। हमेशा कंट्राडिक्शंस होती हैं एक टॉपर की स्ट्रेटजी के दूसरे टॉपर की स्ट्रेटजी के साथ, लेकिन क्रक्स ये है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और इसका कोई सेकंड ऑप्शन है नहीं पढ़ाई के अलावा। तो वो दिमाग में रखना। और जैसे इन्होंने बोला दोस्त इंपॉर्टेंट हैं, मेरे दोस्तों ने मेरे को यही बोला कि तू फर्स्ट में ही करेगा, तो पता नहीं है मेरे को कि उन्होंने क्यों बोला, बट शायद वो सच हुआ आज। तो वो वाला कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, मतलब दोस्तों का कॉन्फिडेंस। ऐसा मैं कोई स्कॉलर था नहीं मतलब पढ़ाई में कि वो उसको देख के बोल रहे हूँ, बट वो बोलते थे और आज ये पॉसिबल भी हुआ है, तो उनका थैंक यू है, और घर वालों का तो है ही है। मैं एंड में यही कहूँगा कि सबसे ज़रूरी है आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप सब यहाँ पे जो बैठे हैं सबके सब केपेबल है इस एग्ज़ाम निकालने के लिए, सब ने इन्फॉर्म डिसीजन लिया है, तो उस हिसाब से मेहनत करिए। आप अब इस एग्ज़ाम में गाइडेंस की इतनी वो है, मिसमैनेजमेंट है कि आप यहाँ पे आके यू हैव ऑलरेडी डन दी हाफ जर्नी। आप आके सही गाइडेंस आपको मिल गई है, आप उसको सही से यूज़ करें, अपने ऊपर भरोसा रखें और मेहनत और शॉर्टकट से कभी कतराएं मत। इस एग्ज़ाम में शॉर्टकट नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर आप कहीं से गलती से प्री से निकल के मेन से पहुँच गए आप वहाँ फंस जाएंगे, मेन से निकल के प्री में इंटरव्यू में पहुँच गए तो वहाँ फंस जाएंगे। शॉर्टकट मत लीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, और किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए होगी, हम सब जितने भी हैं हम सब वी आर ऑलवेज अवेलेबल। कभी भी आप कोई भी हेल्प लगे, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। I would like to say कि for some of you journey can be long. मैंने खुद multiple attempts लिए to qualify. Though I sincerely hope कि आप सबका first attempt में ही हो जाए. But still मैं ये बोलूँगा कि अगर नहीं होता है तब भी you should be dedicated. Perseverance बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, कि आप अगर रेगुलर रूटीन फॉलो करेंगे, जो मैंने या इन सब लोगों ने बोला कि आपको अपना शेड्यूल बनाना है, रिवीजन करना है, तो sooner or later you will qualify and you will become a civil servant. So don't lose hope. अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी होता है
that's it I want to say. Keep studying, keep working hard, or sooner or later you will get the fruit. Thank you. विश यू ऑल दी बेस्ट. दिस इज योर होम. कभी भी आपको दिल्ली में कोई समस्या हो, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज ऑल्सो, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, आप यही सोचो कि हमारे गार्जियन यहाँ पर हैं. यू आर सेफ इन वेरी सेफ हैंड्स. दिस इज योर इंस्टीट्यूट. कभी भी लाइफ में भी कभी ऐसा लगे कि आपको कोई भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए, सो डू नॉट हेजिटेट. वी आर ऑलवेज देयर एंड वी आर ट्रू वेल विशर फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर इट.